Okay, so great. So myself Vijay and with me Kapilaj is here and I will be both welcome you all of you for the synergy session or hand over to Kapilaji. Once again, very good evening to all of you. And today, as regular Fridays, we have a new guest with us, Dr. Sunil Prakash. हेलो सर, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सके तो विजय जी अकॉर्डिंगली आप स्पॉटलाइट कर सकते हो. Yes. यस, वेलकम सर. एंड मैं एक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दूंगी सर का. आई एम फ्रॉम गुड़गांव. मैंने रेकी सीखी थी बहुत पहले, सो आई वाज प्रैक्टिसिंग रेकी. But my interest was always in this area. Why some of the people are not able to leave some habits even after practicing lot of Reiki and few other things also. And I till date I don't know मुझे डॉक्टर सुनील का कैसे पता चला था. मे बी किसी का व्हाट्सएप स्टेटस या मैंने कुछ पढ़ा होगा. बिकॉज व्हेन आई हैपन टू मीट हिम एंड उनके साथ जो काम करती है रीना, आई आस्क्ड हर मैंने सर का कभी एड वगैरह कहीं नहीं देखा काम का. तो शी टोल्ड मी दैट सर इज वेरी क्लियर, मेरे स्टूडेंट्स मुझे खुद ढूंढ लेंगे. आई थिंक दैट्स व्हाट रीना टोल्ड मी कि सर बिल्कुल भी ही डज नॉट डू दिस. सो एंड दैट वाज ट्रुथ टू द टी ऑल्सो. मैंने इनके साथ हिप्नोथेरेपी के काफी सारे लेवल्स किए. आई रिमेम्बर इट वाज बिफोर lockdown. I think we were there for almost few months, 3-4 months. We were taking sessions and levels and all. And I think I never understood the mind before. जैसे सर ने हमें समझाया कि हाँ, पावरफुल इज द माइंड, व्हाट इज द मेमोरी बैंक. एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, टू थिंग्स जो मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है सर की. फर्स्ट थिंग इज ही डजंट होल्ड ऑन टू एनीथिंग. मतलब कोई नॉलेज है तो मेरे पास रहे, आपको नहीं शेयर करूं बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अबव यू. आई नेवर सॉ दैट इन सर. मतलब एट द एंड ऑफ ऑल द कोर्सेज आई रियलाइज दैट आई हैव एवरीथिंग टू प्रैक्टिस दिस. इतनी प्रैक्टिसेस, इतने सेशंस, इतने सारे डिस्कशंस हमारे हुए. आई लिटरली फेल दैट वॉट एवर ही, other than book knowledge, whatever experience he has gained for so many years, he just shared everything with us. Secondly, ladies and gents both are very particular about our private parts when it comes to, our sexual areas. मैंने पहली बार अपनी लाइफ में a man talking about a woman parts in such a respectful manner मैंने देखा. And that class, मुझे आज भी वो क्लास याद है. It was so graceful. And understanding your own body through this channel was an eye opener for all of us in the class. So these two things I always remember, apart from the food we used to have for lunch, जो रीना हमारे लिए स्पेशली ऑर्डर करती थी. सर इज फ्रॉम गुड़गांव, आई एम ऑल्सो फ्रॉम गुड़गांव. एंड he's hardly, his place is hardly 5-7 kilometers from my place. So I feel myself very lucky. I think he's the second or the third teacher in my journey of this inner knowingness, where I met people who are a giver, who are complete giver. चाहे वो मेरी रेकी टीचर रही, सुनील सर रहे या मनोज जी हैं. They don't hold on to anything, and that is very important. And you played a very important role in what I am today. And I still remember your words, Kapila, you have a long way to go. I still remember that. So that is my remembrance of you. And over to Vijay sir. Now he'll be reading your formal introduction. Right? Yes. Thank you so much for giving me this opportunity. So जो सर से मुझे मिला हुआ है इंफॉर्मेशन काफी सारी डिटेल में है, बट हम बहुत सारी चीजें उनसे खुद जानने वाले हैं. तो मैं कुछ चीजें जो स्पेसिफिक हाईलाइट की हुई वही मैं पढ़ता हूँ. सो डॉक्टर सुनील प्रकाश जी है सर्टिफाइड क्लिनिकल hypnotherapist and certified trainer of clinical hypnotherapy from the California Hypnosis Institute. Hypnotherapy. Hypnosis, okay. Yeah, hypnosis. Sorry. And hypnotherapy. Okay. So again, he is associated with many other things also. And in 2008, Dr. Sunil Prakash had a life-changing encounter while attending a psychotherapy conference in the USA. He met a clinical hypnotherapist who introduced him to the remarkable effectiveness of hypnotherapy as a healing modality. Determined to pursue his passion for healing and teaching, Dr. Sunil Prakash spent little time completing his hypnotherapist course
and Trainers Program from CHI USA. Within a year, he started his hypnotherapy academy. Since 2009, he has been successfully running the California Hypnosis Institute, Gurgaon, in India. And beside his professional endeavors, Dr. Sunil Prakash actively participates in several welfare organizations, including Lion Club International and Rotary International. He is also author of these 3 books, The Soul Game, The Mental Wallet, Your Success Genie, and Life is Naughty After 40. Through his books and his therapeutic expertise, Dr. Sunil Prakash continues to empower individuals to explore the depth of their consciousness, rewrite their life narratives, and unlock their true potential for success, happiness, and the personal growth. So thank you so much, sir, and welcome to the Synergy Show. Thank you, Vijay, for a nice, crisp introduction. Let's move forward. Yes. Over to you, sir. You can share your journey and how it all began and what is the importance of hypnotherapy and hypnosis, because this is the topic we have not discussed a lot in the Synergy program. I remember one sir comes from Landmark Healing Institute from Bangalore, if I'm not wrong. So there is always, and we talk a lot about memories in our program, Dr. Sunil, that Manoj ji जो हमें सिखाते हैं वो यही चीज सिखा रहे हैं कि हम किस तरह एक मेमोरी बैंक है और हम उसको रिविजिट करते रहते हैं, रिवाइव करते रहते हैं अदरवाइज, और हमें वो सिखाता है प्रैक्टिस के साथ कि किस तरह से वो जो आपने अगर अलार्म की स्लाइड देखी हो डॉक्टर सुनील, वो अलार्म 1.5 घंटे के हैं कि आप वापस अपने आप को 0 पे लेके आओ, वापस शून्य में लेके आओ कि यू आर नो बडी, और वो रिमाइंडर हमें सेट करना होता है, जो हम ये 8 बजे आपके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे. सो इफ वी कैन स्टार्ट विद दिस अबाउट योर जर्नी, अबाउट your personal professional life, and we can talk more about how memories are playing that important role. And मनोज जी हमें यही बता रहे हैं कि वो मेमोरी इस लाइफ की और पास्ट लाइफ की भी हो सकती है, and that's what we cater to in hypnotherapy also. So I think आपका एक वो साइंस ऐड हो जाएगा उसमें, और तो इट विल बी मोर क्लियर टू पीपल कि हमारे को जो इमोशंस भी अप एंड डाउन होते हैं वो 99.999% हमारी मेमोरी प्ले कर रही होती है, नॉट द एक्चुअल इंसिडेंट्स. राइट? सो ओवर टू यू. ओके, थैंक यू. मैं इस चीज को इससे शुरू करना चाहूंगा. बचपन में हमेशा एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रही. कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी मेडिकल डॉक्टर नहीं बन पाए, और वो ख्वाहिश कहीं ना कहीं थी. और ख्वाहिश खाली मेडिकल डॉक्टर बनने की नहीं थी. जब हम स्कूल और कॉलेज में थे तो अमेरिकन लाइब्रेरी और ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाके आई यूज्ड टू स्टडी बुक्स ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी. कहां से इंटरेस्ट आया मुझे मालूम नहीं. क्लास में सब्जेक्ट तो था बायोलॉजी का, बट चाइल्ड साइकोलॉजी में कहां से इंटरेस्ट आया नहीं पता. सो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी और अमेरिकन लाइब्रेरी से हम मैं बुक्स ला के पढ़ता था. सो ख्वाहिश होने के बावजूद कि डॉक्टर बनना है, मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, नहीं कर पाए. यूपी से एग्जाम दिया, बेस्ट मेरिट लिस्ट में भी आए, फिर भी किसी वजह से जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो उसको ड्रॉप कर दिया. लाइफ कैसे टर्न लेती है कुछ पता नहीं. पिताजी बिजनेस में थे. एमएनसी एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डीसीएम, जो बहुत बड़ी नॉर्थर्न इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें कैसे हम एमआईएस में पहुंच गए हमें मालूम नहीं. सी द शिफ्ट इन लाइफ. कोशिश करने के बावजूद भी लाइफ में ऐसे शिफ्ट आते हैं कि हमें पता नहीं कहां से वो शिफ्ट आते हैं. इसको मैं टच अपॉन करूंगा बाद में कि ये क्यों शिफ्ट आते हैं और क्या कारण है इसका. तो एक लाला लहू की कंपनी, डॉक्टर भरतराम की कंपनी में ज्वाइन करा मार्केटिंग में. मार्केटिंग से कपड़ा बेचा और कपड़ा बेचते बेचते कंप्यूटर में एमआईएस में चले. सी द शिफ्ट फ्रॉम माय प्रोफेशन.
वहां पे लाला जी की कंपनी में जाके सिस्टम्स, मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करे और वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइफ कैसे चलती है, क्या होता है, अच्छाई कैसे होती है। तो दैट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट। और लाला जी की कंपनी में रहते रहते एफएमएस से एमबीए भी कर, राइट। तो जो कभी सोचा भी नहीं था कि दैट आई विल बी एबल टू डू दैट। उसके बाद क्योंकि बचपन से था कि कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन में जाना है, हीलिंग करनी है लोगों की, उनको ठीक करना है, तो शुरू से ही सोशल सर्विस में बहुत पार्टिसिपेट करा, लेप्रोसी कॉलोनी में काम करा। जस्ट इमेजिन, इट्स अ वेरी डेंजरस एरिया वेयर टू वर्क विद, लेप्रोसी पेशेंट्स के साथ वर्क करा, आउट ऑफ इंटरेस्ट, कोई कॉम्पिटिशन नहीं थी। तो उसके बाद जब अब सी द शिफ्ट इन माई लाइफ, कहा एक कॉर्पोरेट सेक्टर, 17 साल की नौकरी। उसके बाद लाला जी की कंपनी का डिवीजन हो गया, तो हमने कहा छोटी कंपनी में तो हम सर्विस नहीं कर सकते, तो आई लेफ्ट दैट कंपनी। आई हैड नो नथिंग टू डू, नथिंग एट हैंड, जस्ट डिसाइडेड वन डे कि नहीं, अब काम नहीं करना है। पिताजी के साथ बनती नहीं थी, वो बिजनेस में थे, उनके वे ऑफ वर्किंग से और हमारे वे ऑफ वर्किंग में बहुत फर्क था। पर दिमाग में आया कि अब कुछ अपना ही करना है, वहां से बिजनेस शुरू कर। जेब में पैसे नहीं, पर रिस्क करना है तो करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बी बोल्ड इनफ एंड यू टू टेक रिस्क इन योर लाइफ। बिना रिस्क लिए आगे लाइफ आज के टाइम में चलती नहीं। वहां से शुरू करा, शुरू करते करते ज्वेलरी के बिजनेस में किसी एक फ्रेंड के साथ मिक्स साथ में बैठ के ज्वेलरी एक्सपोर्ट सीखा, जबकि नहीं आता था। और वहां से आज सन 90 से लेके अभी तक कितने 33 इयर्स आई एम इनटू बिजनेस। बिजनेस इज माय अर्निंग पॉइंट टुडे। हिप्नोथेरेपी इज अ पैशन, हीलिंग इज अ पैशन, ट्रेनिंग इज अ पैशन एंड नॉट माय अर्निंग पॉइंट। अब कहीं ना कहीं क्योंकि बचपन में था कि कहीं हीलिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, तो अब जाके वो सब हमारे दिमाग में आया। विजय जी, यस, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपकी जो आपने दो बातें ओके, बताई। ओके, थैंक यू। सो अब एक और टर्निंग पॉइंट आया जब हिप्नोथेरेपी सीखने की कोशिश करी। तो जैसे क्लास में इंट्रोडक्शन होता है सब बच्चों का कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो, क्यों सीख रहे हो। मुझे नहीं पता कहां से जब मेरा नंबर आया तो मेरे से पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हो। हिप्नोथेरेपी तो ऐसी शॉप में सीख ली, क्योंकि कुछ इश्यूज थे जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे साइकोथेरेपी से। तो हमने कहा कि कोई ना कोई और चीज होनी चाहिए। तो हम कहां से उसको बोले अपने टीचर को, मेंटर को, आई वॉन्ट टू स्टैंड देयर वेयर यू आर। अरे हिप्नोथेरेपी सीखी नहीं है और मेंटर को कह रहे कि मैं तेरी जगह लेना चाहता हूं, मीन्स आई वांट टू बी अ ट्रेनर। दिमाग से कहां से आवाज निकली मुझे नहीं मालूम। आज समझ में आता है इस बात की कि आवाज कहां से निकली, क्योंकि हमारा मन, जिसको मन कहते हैं, और एक है दिमाग, दोनों में बहुत फर्क है। दिमाग हमारा है कॉन्शियस माइंड से हम काम करते हैं, वो दिमाग है। मन जो हमारे अंदर की अंतरात्मा जो हमारी आवाज करती है, वो हमारा मन है। तो उस दिन जो आवाज निकली वो मेरे मन से निकली, क्योंकि दिमाग में तो था ही नहीं। एंड दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ एंड अ चेंज इन माय लाइफ। आई गॉट माय आंसर ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग, during my teaching learning programs, and I was a very angry person at that time. जरा सी बात पे गुस्सा यहाँ रखा है, चीजें उठा के फेंकना और सब कुछ करना। तो जब ये हिप्नोथेरेपी सीखी
और पढ़ाना शुरू करा। सबसे बड़ी बात, गुस्सा कहाँ चला गया मुझे आज तक कैसे खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, आई डोंट नो। तो दिस इज माई जर्नी विच आई हैव सीन इन माई लाइफ कि आई एम टोटली अ डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। अब यहाँ पे एक दो सवाल उठते हैं, और इस स्लाइड में भी एक वर्ड आया था मी। हम कहते हैं कि मैं हूं, मैं कहता हूं कि मैं नहीं हूं, हम हैं। मैं और हम में बहुत फर्क है। हम मीन्स हम दो लोग हैं, दो एंटिटीज हैं, और हम हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए हम वर्ड जो है बहुत जेंटल वर्ड, बहुत पावरफुल वर्ड है। क्या आप बता सकते हैं कि ये हम में से दो लोग कौन है? कैन एनीबडी गिव मी एन आंसर फॉर दैट? कैन यू ट्राई? हम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने आंसर, जस्ट गिव इट अ ट्राई। Me and universe. Any further answers? Me and my soul. Yes, Anuradha, you're very correct. हर इंसान के अंदर उसकी आत्मा है। मैं जो है वो बॉडी है, और आत्मा जो है एक एंटिटी है जो कि मेरी बॉडी को काम करती है। इसलिए हम कभी अकेले नहीं हैं। आत्मा है तो बॉडी चलती है, और बॉडी है तो आत्मा है। इन दोनों का एक चोली दामन का साथ है, और हमेशा साथ है। जिस दिन जिसका भी दामन बिछड़ गया, उस दिन मैं ही मैं रह गया, हम खत्म हो गए। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो कभी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। जो मेरा तात्पर्य है कहने का, समझाने का, कि कभी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। आप हमेशा अपने आत्मा के साथ हैं, और आत्मा आपके साथ है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरी जिंदगी बिताते, और एक दूसरे की मुसीबत को और उसकी खुशी में पार्टिसिपेट करते हैं और काम करते हैं, और एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं, करेज देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, और एक पावर देते हैं। तो इसलिए हमेशा सोच के चलो कि हम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल, एंड डोंट यूज द वर्ड मी। जब भी आप मी का वर्ड यूज करेंगे तो ईगो आपके अंदर है, और जब आप हम का वर्ड यूज करेंगे तो आपके अंदर ईगो नहीं है। क्यों? कि आप दो लोगों को इकट्ठा एड्रेस कर रहे हैं, आप अपने आप को एड्रेस नहीं। सो इस चीज को समझना, जो इस चीज को समझ जाए, गीता में भी यही सब लिखा है, पर हम इस टाइम दूसरे लैंग्वेज में, बड़े लेमन लैंग्वेज में आपको समझाते हैं कि हम हमेशा दो हैं, और हम दोनों को हमेशा एक दूसरे का साथ, हाथ पकड़ के साथ चलना है। तो अब अकेलापन मत करो, अकेलापन महसूस मत करो। जब आपको अकेलापन महसूस हो तो आपका जो पार्टनर है उसके साथ बात करनी शुरू, उसके साथ अपने दुख दर्द को शेयर करो। जब आप अपने दुख दर्द उसके साथ शेयर करोगे तो अंदर से आपको बहुत ही शांति और एक पीसफुल वातावरण महसूस। सो दिस इज द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ। सो दिस इज माई स्मॉल वर्ल्ड, एंड दिस इज हाउ आई हैव ग्रोन। और आज भी मेरा बिजनेस मेरे लिए कमाई का जरिया है, पर ये हिप्नोथेरेपी जो है, ये हीलिंग जो है, और ट्रेनिंग, इवन ट्रेनिंग में मैं बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, मैं ये कहता हूं कि मैं ट्रेन नहीं कर रहा, वो मेरे को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस उनसे मेरे को मिलते हैं वो मेरे को और एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे एक चीज और समझने की है, जब आप इसको खाली करोगे ना, बांटोगे, तभी यहाँ जगह खाली होगी। और जो स्टूडेंट्स आपको
मटेरियल देंगे, तभी आप उसको यहाँ रिटेन कर सकते हो, नहीं तो आप रिटेन नहीं कर सकते। तो जगह बनाओ, क्लटर को हटाओ और नई चीज लेके आओ। और यहाँ ही इसी में नहीं, अपने घर में, अपनी वातावरण में, सब चीजों में आपको ये करना चाहिए। पुरानी चीजों को डिस्कार्ड करिए, तभी नई चीज लेके आएंगे। और आपका अपना सोचने का नजरिया, आपका अपना यूज करने का नजरिया, और सबसे बड़ी बात, जब पुरानी चीज आप देंगे लोगों को तो आपको कितनी दुआ मिलेंगी। तो पुरानी आपने निकाल दी क्योंकि आप यूज कर चुके, आपने दुआ ले ली, और नई चीज आप ले आए। और नई चीज को आप जो है जब अच्छे से यूज करेंगे तो आपको नई नई चीजों का देखने का, समझने का आपको एहसास होगा। तो ये ही छोटी छोटी चीजें हैं जो सब हिप्नोथेरेपी समझाती है और बात करती है। आई थिंक आई हैव स्पोकन मच. Let's move forward and then we'll have a lot of other question answers. सर आपने एक बहुत अच्छा टूल आज हमारे लिए डिफाइन कर दिया है और डिटेल में. कैन somebody write on the chat box which tool sir is हम we can relate with? जैसे उन्होंने अभी बोला, खुद से बात करो, जो फंसा हुआ है, क्लटर है, उसको निकालो, कुछ नया डालो. व्हाट इट इज ऑल अबाउट. मनोज जी एक बहुत सुंदर टूल देते हैं. यस, एब्सोल्युटली राइट. इट्स TYT TYL. इसके बारे में और बात करेंगे डॉक्टर सुनील, बट अभी जो आपने समझाया, यस ऑफ कोर्स ये लेमन लैंग्वेज में, बट हाउ डू यू कनेक्ट दिस विद हिप्नोथेरेपी एक्चुअल प्रैक्टिस? आप उस बारे में प्लीज हमें थोड़ा बताइए. दैट हाउ, विद मे बी विद एग्जाम्पल और समथिंग, आप कुछ कोट कर सकते हैं कि दिस हैज हैपेंड इन समबडीज लाइफ एंड दिस इज हाउ डीक्लटरिंग एक्चुअली हेल्प्ड अ पर्सन टू लुक, टू चेंज द पर्सपेक्टिव, की नजरिया कैसे बदला उसका. देखिए, एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं और इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि अगर आप सेशन रूम से बाहर आके अपने आप को खाली नहीं करेंगे. अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप सेशन लेते हैं. जब आप सेशन लेते हैं तो पहले सेशन में हम क्लाइंट की हिस्ट्री लेते हैं, बचपन से लेके अभी तक उसने क्या क्या करा. तब उसको एनालाइज करते हैं कि जब उसने ये करा होगा तो इस चीज से उसकी लाइफ में ये इम्पैक्ट आया. राइट. उसने बताया, एज ए थेरेपिस्ट हमने भी सुना. राइट. तो हमारा कहना यह है कि वहां पे बिल्कुल न्यूट्रल होके बैठना चाहिए. कारण उसका एक कारण है कि जब आप न्यूट्रल होके नहीं बैठेंगे और अपनी लाइफ को सामने ले आएंगे तो आप उसकी लाइफ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उसकी लाइफ में उलझ जाते हैं. ठीक है. अब नंबर 1, 2 घंटे अगर किसी की आप कहानी सुन लें तो जिसकी दर्दनाक कहानी होगी वही आपके पास आएगा. अदरवाइज अ पर्सन हु इज लिविंग अ गुड लाइफ विल नॉट कम टू यू. करेक्ट. सो 2 घंटे, आफ्टर 2 hours, imagine what will be the state of affairs of a therapist if he wants to retain everything what he has learned about the client. So the question of decluttering is that the moment you are out of that session room, forget everything. And that's why we say we make notes so that we can reconsider the notes when he comes again. I don't have to remember his history. Now, same thing, that if I take 5 sessions in a week, how many sessions in a month? 20 sessions in a month. Right? How many sessions in a year? 12 into 240 sessions. Imagine what will be my state of affairs if I start putting everything on my bookshelf, you know. This is what is called as decluttering. Decluttering means the moment you are out of the session room, forget everything. Come back to your normal family life. That means you have removed everything what you heard about the client. And when he comes next time, consider your notes. Re-understand what. Then you will immediately recollect him. कारण क्या है उसका, understand.
हम जो मन की बात करते हैं और एक दिमाग की बात करते हैं, दिमाग मेरा ब्रेन है, मन है कोई चीज, मन क्या मन और दिमाग एक ही है? व्हाट पीपल हैव टू से, क्या मन और दिमाग एक ही है? नहीं नहीं नहीं। ओके, देन डिफरेंस क्या है? अगर मन और दिमाग एक नहीं है तो हम बात करते हैं ना, वी से दैट it is our mind which gave this thought, and it is my decision that I want to do this. My head says, my intelligence, my education says so, because that is there in the head. But mind is where the thought process is generated. Brain is physical, mind is collection of thoughts. Antaratma and conscious mind. That's right, I agree. But can you define what is mind and where it is mind? See, that is the basic difference, which layman does not understand. हम scientifically hypnotherapy में we prove that decisions are taken in two ways. One decision, that I take a conscious decision that I want to do something. Another decision is that some voice comes within me and says, do this. This is the total difference between the two. When I say that I want to take a conscious decision that I want to do something, that conscious decision I am taking from the mind. But when something comes within me and says, okay, you should do this, you can call it intuition, you can call it anything else, that is coming from the mind. So, according to us, mind is divided into two parts, the conscious and the subconscious mind. Conscious part is my head, which is making the decisions, conscious decisions, that I want to do this. But there is something which is coming within me, is coming from the subconscious mind, which is not in my control. I can control my decisions through my head. But what is coming within me, I cannot control that. That comes automatically. But that includes negative emotions also, isn't it? If a It fear is both positive and negative. Right. If I want to do something wrong, that also comes within me. Now there is a reason why that comes within me. This is where that question of past life comes in. Okay. What is my life? My life is nothing but a life script. I have come into this life for a purpose. And that purpose is defined the day the life came into the womb of my mother. The soul entered into the dividing cells, multiplying cells into the womb. And then it is at that time when the soul has entered. आत्मा जिसको हम कहते हैं, आत्मा जब मेरे उस सेल में घुसती है तो आत्मा पहले से एक लाइफ प्लान बना के लाती है कि मुझे इस लाइफ में क्या क्या करना है. So, a lot of questions are coming about subconscious memory and intuitions and subconscious mind and spontaneously mind. Right, that is right. That is what I'm trying to explain. That conscious decision I take by my brain. But something coming spontaneously within me. Why it is coming spontaneously within me? Because it is already written in my life script that at this moment, at this time, at this age, this is what you are going to do. Now, let me go back to little bit to my life. When I was just learning. From where that idea came that I want to stand there where you are standing, I'm telling to my mentor. I don't know. That means it came spontaneously from my subconscious mind. My subconscious mind knew that sometime after some days or some years, I am going to be a mentor myself. It is already written there that you are going to be a trainer.
of hypnotherapy. See the shift in my life. Wanted to be a doctor when I was a child. I couldn't do it. Fine. I'm still not a doctor, a medical doctor. But then I'm a doctor by hypnotherapy because I'm healing. Then, from that idea of being a doctor, I shifted my life to a MNC and went into a management system. I never learned any management system. Working there in the office, I went to FMS to do my MBA and learn the management system and then implemented in my company, in the corporate office. Now, fine, father was a businessman, but I never had any liaison or understanding with him of the business. But then, even after leaving that job, I went into business. But Dr. Sunil, of course, we all have that inner voice coming out of us. Yes. I think most of us practice, हम लोग सब TYL मतलब talk your thoughts to yourself loudly. Correct. अपने आप से बात करना है, वाई करके बात करना है, so that मुझे पता चले जो आपने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, जी, पर वो डर की भी हो सकती है, डिस्टर्बेंस की भी हो सकती है, फोबियाज की भी हो सकती है, और मेरा कॉन्शियस माइंड उसके साथ कंटिन्यूअसली बात कर रहा है कि कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, इसको रिफ्रेम कैसे करें, एफर्मेशन करें, मेडिटेशन करें, पिवटिंग करें, कुछ भी करें ताकि इन्फॉर्मेशन को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकूं. सपोज मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मुझे हीलर बनना है, अगर मैंने अपनी जो जितनी भी आपके साथ या कहीं और भी अपनी पास्ट लाइफ्स देखी हैं, मैंने मोस्टली लाइफ में अपने आप को इसी रोल में देखा है. However, I think actions of this life are also very important because हमारी choices भी बहुत important होती हैं. तो आपके एक्सपीरियंस में जितने लोगों को आपने देखा, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे जो एक्चुअली में कुछ और कहीं और जाना चाहते थे पर पहुंच कहीं और गए. सो उनकी लाइफ में चॉइसेस का, जैसे आपको भी अगर लगा कि मुझे उस टीचर की जगह पे खड़े होना है, तो आपने बहुत एफर्ट्स डाले होंगे उसके लिए, तभी आज आप यहाँ पर खड़े हो. सो आप उसके बारे में कैसे इलैबोरेट करोगे? बिकॉज मनोज जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रा है, रोज थोड़ा करो, रोज करो. आपका जो विजन गोल है उसको 7-8 स्टेप्स में उन्होंने बांटा हुआ है. एबंडेंस जनरल हम मेंटेन करते हैं, जो भी छोटी छोटी चीजें हमको मिलती हैं, सो दैट ये जो सबकॉन्शियस से नेगेटिव या सो कॉल्ड लो इमोशंस आ रहे हैं उसको कंटिन्यूसली रिफ्रेम करो एंड देन मेक अ बेटर चॉइस एवरी डे. सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस थोड़ा करो रोज करो, कि अंदर की आवाज को भी गाइडेंस चाहिए होती है? बिल्कुल चाहिए. यस, तो आप प्लीज उसके बारे में. इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं कपिला विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो ये होती है कि कई दफे मैं अपनी जिद को, अपनी रिजिडिटी को, अपने बिलीफ सिस्टम को पकड़ के बैठ जाता. मेरे माँ बाप ने सिखाया है, उन्होंने अपने टाइम में सीखा था, आज टाइम चेंज हो रहे हैं, तो मुझे टाइम के हिसाब से अपने आप में बदलाव लाना. सबसे पहली बड़ी बात ये जरूरी है कि टाइम के हिसाब से बदलाव हो. दूसरी चीज जरूरी है कि जो अंदर से आवाज आती है, जो मन कहता है, उसको करना बहुत जरूरी है. कई दफे हम उसको करने की कोशिश नहीं करते, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते. अंदर से मन तो कुछ कह रहा है. और इसके साथ हमें ये चीज भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग और हमारे एनवायरमेंट जो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो हमें मिक्स एंड मैच करना और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और उन सब चीजों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है. अगर हम मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, तो फिर हम एक ही अपनी रट में चलते हैं. अब जैसे आज के टाइम में इनोवेशन में हमारे यहाँ एक ऑल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज जनरेटर और इन्वर्टर्स. राइट, कि अगर बिजली चली गई तो मैंने जनरेटर ऑन कर लिया या मैंने इन्वर्टर ऑन कर लिया तो मेरे को लाइट मिल गई. हमारी लाइफ में यूनिवर्स ने हमेशा एक पैरेलल स्क्रिप्ट बना के रखी है, वो समझना जरूरी है. हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं लाइफ में. 2 के क्या, 3 और 4 भी होते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल अभी दूंगा. तो वो जो ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल हैं,
वो मेरे पास फ्री विल के हिसाब से मैं उन ऑप्शंस को यूज करना चाहूं तो यूज कर सकता हूं, और उस फ्री विल से मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकता हूं। तो अगेन मेरे अंदर कितनी हिम्मत है, कितना मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर सकता हूं, वो मेरे अंदर डिपेंड है। अब ये जो फ्री विल का एग्जाम्पल है, मैं आपको एक बात बताता हूं, और ये पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन है, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट कहां से बनी, मेरे कर्मा पहले क्या थे, उन कर्मा में मैंने क्या अच्छे काम करे थे और क्या बुरे काम करे थे। और कर्म की जो एक परिभाषा है वो एक बड़ी सिंपल है, जो आज हम डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं। आप लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं हर साल, अकाउंट्स में आप क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स में आप यही कर रहे हैं ना कि इसका लेना देना, इससे लेना है और इसका देना है। क्या एट द एंड हर साल में आपके अकाउंट्स लेना देना बैलेंस जीरो हो जाता है? नहीं होता। उसको आप अगली लाइफ, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यही हमें कार्मिक थ्योरी है। कार्मिक थ्योरी में जो मैंने इस साल में काम करे हैं, अच्छे इस लाइफ में, मतलब अच्छे या बुरे, जो अच्छे करे हैं हो सकता है वो मैंने पीछे के पाप धो दिए और कुछ नए अच्छे कार्यक्रम कर दिए आगे के लिए। पर जब अच्छे कार्यक्रम करें तो हो सकता है थोड़े से बुरे कार्यक्रम भी करें। अब जो बुरे कार्यक्रम करें तो अगली लाइफ के वालों के लिए कर दिए ना, अब वो अगली लाइफ में जब वो आएगा भुगतेगा उसको। तो अब मेरी जो लाइफ स्क्रिप्ट है वो वहीं से बनती है, पिछली लाइफों में मैंने क्या क्या करे थे जिसका कि मेरे को बैलेंस आउट करना है इस लाइफ में। तो मेरी जो सोल है, आत्मा है, वो उन सबकी लिस्ट बना के लाती है और मेरे से इस लाइफ में वही सब करवाती है। तो कपिला जी, इसमें जो आपने सवाल कहा कि हमें चेंज करना चाहिए, एकदम से भागना नहीं चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, वो जो टॉर्टाइज और रैबिट की रेस का एग्जाम्पल है, हमें टॉर्टाइज बन के चलना, रैबिट बन के नहीं। तो जो आपका एग्जाम्पल है, धीरे 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 चलोगे, यू विल ऑलवेज विन द रेस। करेक्ट। दौड़ लगाओगे तो आप कभी रेस जीत नहीं सकते। एंड जो आपने अभी कार्मिक थ्योरी बताई ना, कि हम पिछला सारा इकट्ठा करके लेके आते हैं, वी डोंट नो व्हाट वी हैव क्रिएटेड। तो उसके लिए मनोज जी की एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स पे लिखिए, हम सुनील सर के साथ भी शेयर करेंगे। क्योंकि वो पासिंग द बक वाला थ्योरी है ही नहीं, हम जिस कल्चर में है उसमें वो मनोज जी बोलते हैं आपके सामने, एंड दिस ही हैज पिक्ड अप फ्रॉम जीरो लिमिट्स, अगर आपने उसका सुना होगा तो 4 मंत्रास, होपोनोपोनो, वो उसमें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू है, वो क्लियरेंस स्टेटमेंट्स है। पर वो क्लियरेंस स्टेटमेंट्स तभी एक्टिव हो रही हैं जब आप एक चीज को पूरी तरह से मान रहे हो। श्यामला माँ, नहीं, दिस इज नॉट द वन, अभी भी रहता है, कुछ तो है। हमारे जो होपोनोपोनो के 4 मंत्रास हैं, वो जब स्लाइड दिखाते हैं सभी लोग, जब ट्रेनर्स दिखाते हैं, उसमें एक चीज आई होती है, नीचे एक लाइन लिखी होती है, दैट व्हाट आई नीड टू डू। आशा जी, एक नंबर इसमें मिसिंग है, आपने सही लिखा, वैशाली ने भी सही लिखा, सोनल जी ने भी सही लिखा, एक नंबर मिसिंग है, नंबर 100%। यस, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। तो मनोज जी का वो मंत्रा है जो उन्होंने हम सबको सिखाया है, और बहुत अलग अलग एंगल से सिखाया है। यू डोंट नो अबाउट योर संचित प्रारब्ध एंड क्रियमन कर्मस। संचित जो आपने इतने जन्मों के इकट्ठे किए, क्रियमन जिन कर्मा को आप इस जन्म में क्लियर करना चाहते हो, और क्रियमन मतलब जो आप इस जन्म में क्रिएट कर रहे हो। सो व्हेन यू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल ऑलवेज बी एबल टू बी इन ग्रैटिट्यूड। हम लोग बहुत, मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग, स्पेशली फॉर दैट विच डिड नॉट गो एज पर माई विश। जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो मेरे मुताबिक नहीं हुआ, तो वो जो सेगमेंट इंटेंडिंग का 1.5 घंटा है, हम उसी में ही वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं, ठीक है ना। बट अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली पैरेलल लाइफ की, इसके बारे में तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी। बट फॉर एवरीबडीज इंटरेस्ट, सुनील सर आप बताइए ना कि सपोज कोई पर्सन आपके पास आता है, अपना कोई
जैसे मैं हूँ, मुझे क्लस्ट्रोफोबिक का डर लगता था पहले। हम्म, बंद हम्म, जगह लाइक एलिवेटर्स हैं या मेट्रोज में मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी। सो इफ अ पर्सन लाइक दिस कम टू यू, एक एक रूटीन हिप्नोथेरेपिस्ट क्या कहाँ से शुरू करता है और कैसे वो सेशन कंडक्ट करता है, जस्ट फॉर एवरीबडीज नॉलेज, बिकॉज हम में से बहुत लोग होंगे जो कभी किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं गए होंगे। सो हम्म। जस्ट द लेमैन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ इट एक्चुअली गोज, अगर आप शेयर करो तो। देखिए, ये दो वर्ड हमारे जहन में है और होते हैं, टू थिंग्स आर देयर, फियर एंड फोबिया। ये जो आपने क्लस्ट्रोफोबिया की बात करी, इसमें वर्ड फोबिया आ रहा है, बट इट कैन बी अ फियर ऑल्सो। देर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फोबिया। डज एनीबडी कैन थिंक, is there a fear and phobia same, or are they two different things? Because ये certain things हैं जो लेमैन को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और कंफ्यूजन रहता है हमेशा। सरिता जी, आपने कहा डिफरेंट, व्हाट इज द डिफरेंस? कैन यू टेल द डिफरेंस? Others also can write it, what you feel, what you think. Okay, Sarita ji, writing phobia is something I didn't know, but I have scared. Phobia might be past life fear. So Vrishali writing fear temporary and phobia chronic. वर्षा जी ने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया, वो एडिक्शन की बात कर रही है लिखकर के, वो अलग एक टॉपिक है। अभी हम फियर और फोबिया की बात करते हैं, तो लेट मी टेल यू वन। फियर इज समथिंग, एक लाइफ में एक इंसान को मैक्सिमम डर किस चीज से लगता है? एग्जैक्टली डेथ। सो जो फियर क्या है? फियर इज नथिंग। अब जैसे आपने क्लस्ट्रोफोबिया की बात करी, किसी बंद जगह में अगर आप वहां फंस गए लिफ्ट में, तो क्या होगा अल्टीमेटली? डेथ, राइट? सो अल्टीमेटली मेरा फियर क्या है? डेथ है ना। हर आदमी डेथ से डरता है, और जिस दिन मैंने उस डेथ के ऊपर से एक कंट्रोल अपने ऊपर डाल लिया और उससे डर हटा दिया, मेरे को किसी चीज का लाइफ में कभी फियर नहीं। अब जो आपने लिफ्ट की बात करी और सेशन की बात करी, तो मैं तो सबसे पहले ये पूछूंगा कि ये कब शुरू हुआ था? फर्स्ट टाइम आपके साथ क्या इवेंट हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था जिससे कि आपके मन में ये डर पैदा हुआ कि मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगी? क्यों? लिफ्ट बंद हो गई, मैं निकल नहीं सकी, तो क्या होगा? मैं वहीं मर जाऊंगा। दैट इज द बेसिक फियर, नॉट ट्रेवलिंग इन द लिफ्ट। सो अल्टीमेटली डेथ इज द फियर, करेक्ट? सो अब कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई इंसिडेंस आपकी लाइफ में हुआ होगा, मे नॉट बी विद लिफ्ट, मे बी समवेयर एल्स। सो हम सेशन में जो पहला सेशन करते हैं, उसमें पूरी लाइफ हिस्ट्री लेते हैं, और जब लाइफ हिस्ट्री लेते हैं तब पता चल जाता है कि ये उसका फियर इस कारण की वजह से है। तो हमें फियर को टच नहीं करना है, हम उस कारण को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, रीफ्रेम करते हैं, उस स्टोरी को बदल देते हैं। जो घटना मेरे साथ घटी थी वो एक नेगेटिव घटना घटी थी, सेशन में जाके फिर उस ट्रांस में ले जाके उस घटना को पॉजिटिव में शिफ्ट कर देते हैं। और जब वो पॉजिटिव में शिफ्ट कर देते हैं तो मेरा दिमाग, मेरा जो अंदर का सबकॉन्शियस माइंड है, वो रजिस्टर कर लेता है कि ओह, वो पुरानी घटना खत्म हो गई, एक्चुअली घटना तो ये नई वाली है जिसमें कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है। तो जिस दिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगी, उस दिन से आपका फियर गायब है। So this is how we try to work and take session and remove your fear. 1 minute more. Now understand what is phobia and what is fear. Fear is something, that untoward event that has taken place in your current life. जो आपके सामने घटी है, आपके साथ घटी है या आपने देखी। फोबिया एक ऐसी चीज है जो बचपन से मेरे अंदर है पर मेरे साथ घटी नहीं है। क्या मतलब हुआ उसका? वो मेरी पास्ट लाइफ से मेरी लाइफ में,
सो जो चीज पास्ट लाइफ से आती है, पिछली लाइफ से इस जन्म में आती है, वो फोबिया कहलाता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। फिजिकल इम्पैक्ट मेरी बॉडी के ऊपर फोबिया का ज्यादा है, ना कि फियर का है। क्योंकि फियर में मुझे पता है कि मेरे साथ ये घटना घटी थी, आगे से जब भी घटना होगी तो मैं अपने आप को बचाव कर सकता हूँ। फोबिया में उसको पता ही नहीं कि क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से मेरे को ये डर लग रहा है, और मैं उसका बचाव कैसे करूंगा मुझे नहीं मालूम। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। लोग इस लाइफ में नहीं समझते लेमन में कि फियर और फोबिया में क्या फर्क है। सो हम अपने सेशन में उस इवेंट को, उसकी कहानी को बिल्कुल पॉजिटिव करके फिर रीप्लांट कर देते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और जब ये करते हैं तो वो डर बिल्कुल निकल जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सुनील सर, बिकॉज इसमें जैसे मनोज जी बोलते हैं ना, पिक्चर बदलो। हमारे जब मनोज जी बोलते हैं कि जब भी कोई चीज डर लगे तो आप उसकी पिक्चर बदलो। सपोज आपका कभी एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा, जैसे वो अपना जी, एग्जांपल कोट करते हैं, तो हमेशा जब भी गाड़ी चलाते हैं या किसी के साथ जाते हैं तो वो डर लगता था कि फिर से हो जाएगा, बिकॉज इट वाज वेरी काफी क्रूशियल एक्सीडेंट था। सो ही सेड आई चेंज द पिक्चर। कोई आपके पैसे लेके भाग गया, आपका बिजनेस बंद हो गया, या आपको हेल्थ वाइज कोई इशू हो गया, रिलेशनशिप में इशू हो गया, अगर आप वो मेमोरी बैंक में वही पिक्चर लेके बैठे रहोगे, देन वो आपको ट्रिगर करेगी बार, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड वो ऐसे बताते हैं, दिस इज योर कॉन्शियस माइंड, दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड, और यहाँ पे जो मेमोरीज है वो जमी पड़ी होती हैं, तो आपको उनको रिवाइव। बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन दिस कि कैसे एक जो आप बता रहे हो ना, पिक्चर चेंज करते हो एक्चुअली या में, आप चेंज या द स्टोरी। वी कैन एक्चुअली टॉक मोर अबाउट इट, बट आफ्टर 5 minutes ब्रेक ऑफ दिस सेगमेंट इंटेंडिंग, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर इट विद यू कि हम इसको कैसे करते हैं एंड हाउ इट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द मेमोरी बैंक विच हिप्नोथेरेपी ऑल्सो केटर टू, या राइट? जस्ट अ क्विक 5 minutes ब्रेक सुनील सर, श्योर, ठीक है? ओके। यस विजय जी। And eventually, we want Reena ji also to come in the spotlight and share something about Sir. But before that, of course, we have few more questions, and I want participants also to drop their questions. They want जो भी आप जानना चाहते हैं हिप्नोथेरेपी के बारे में, हिप्नोसिस के बारे में, या हाउ इट वर्क्स और किस तरीके का होता है, तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख लीजिए। बिकॉज मैंने खुद ये बहुत सारे सेशंस लिए, मैंने देखा लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द लोग बहुत डरते हैं। वो बोलते हैं हम नींद में चले जाएंगे, हम सो जाएंगे। अच्छा, एक वन पर्सन आस्क्ड मी दिस ऑल्सो कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, ऐसा हो जाएगा कि मैं दूसरी लाइफ से वापस नहीं आऊंगा। सो ऐसा करके आपको कोई भी ऐसा आपको लगे कि इट्स अ क्रेजी क्वेश्चन, बट बिलीव यू मी, लोगों को हिप्नोथेरेपी को लेके बहुत सारे क्रेजी क्वेश्चंस ही होते हैं। सो ऐसा कोई भी आपको लग रहा है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए, सर उसको आंसर करेंगे, बट इन शॉर्ट, ताकि ज्यादा लोग के क्वेश्चंस हम लोग पूछ सके। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट सुनील सर, कि आपने बताया कि जो फर्स्ट सेशन होता है, आई रिमेम्बर दैट सेशन हैड अ पर्टिकुलर नेम, हम उसे क्या बोलते थे सर? कॉग्निटिव सेशन। कॉग्निटिव सेशन। तो आई रिमेम्बर सर हमारे साथ बैठा करते थे, वो 1.5 घंटे के सेशंस हुआ करते थे, नोइंग एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। एंड उसने मुझे एक चीज में और बहुत मदद की, टू नो द पीपल अराउंड मी। अगर मुझे मेरे मेरे हस्बैंड को भी समझना है ना, तो मैं उसका बचपन थोड़ा सा निकाल लेती थी। मुझे मेरे बेटे को भी अगर कोई पैटर्न है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसको बोलती थी कि तू याद कर तेरे साथ बचपन में ऐसा कब हुआ था। सो मेरी सिबलिंग्स के साथ मुझे बहुत मदद मिली है उस चीज से। तो अगर आप हिप्नोथेरेपी सीखते हो तो ऐसा नहीं कि आपको प्रोफेशनली ही करना है, आपको पर्सनली बहुत हेल्प मिलती है। ना आई थिंक हमने सेल्फ हिप्नोसिस भी सीखा था सर से, कि आप बहुत आराम से अपने खुद के माइंड के अंदर जा सकते हो, रीफ्रेमिंग कर सकते हो। जो रीफ्रेमिंग हर 1.5 घंटे बाद हम कर रहे हैं, वही रीफ्रेमिंग हम एक छोटे से सेल्फ हिप्नोसिस सेशन से भी कर सकते हैं। सो कमिंग टू दैट पॉइंट कि हाउ इम्पोर्टेंट आर पिक्चर्स, आपने बोला जैसे कि हम वो स्टोरी बदल देते हैं वहां पे। जी, सो आप उसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कोई पर्सन किसी प्रॉब्लम से आया है, किसी डर से आया है, और मे बी रिलेशनशिप बहुत खराब है उसका, या कोई चीज है जो उसको मे बी नाइट में रहे, कोई चीज डराती है। हाउ दिस चेंजिंग ऑफ पिक्चर एक्चुअली हैपेंस एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ इट? तो आप थोड़ा सा उस बारे में बताइए।
मैं एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारे ह्यूमैनिटी में किसी भी रिलीजन में चले जाइए, हमेशा एक फीमेल को अबला माना गया, और हम मेल शेविनिज्म की सोसाइटी में जी रहे। मेल्स अपने आप को बड़ा मानते हैं। बड़ा क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि मैं ही बस सब कुछ हूं और जो मैं कहूंगा वो ही होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि एक नारी शक्ति को उसने बिल्कुल दबा के रखा। अब बचपन में हम लोग आपस में खेलते हैं, नानी के घर जाते हैं, दादी के घर जाते हैं, सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, खेलते हैं। तो उस टाइम आप जस्ट गो बैक टू योर चाइल्डहुड, क्योंकि मैं एक सेशन भी करूंगा इनर चाइल्ड का भी आपके पास, आपके साथ 10 मिनट का। गो बैक टू योर चाइल्डहुड। बचपन में जब आप नानी के घर, दादी के घर समर वेकेशन में जाते थे, सारे बच्चे इकट्ठे होके खेलते थे। क्या क्या खेलते थे? छुपम छुपाई, कभी पर्दे के पीछे, कभी सोफे के पीछे। डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे। क्यों खेलते थे? कभी आपने रियलाइज करने की कोशिश करी है? इसलिए खेलते थे कि आप ग्रोइंग एज में, और एक मेल और फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है। उस टाइम एक जिज्ञासा मन में आती है ये समझने के लिए कि हम दोनों में क्या फर्क है, और उस जिज्ञासा के अंदर आप ऐसे खेल खेल जाते हैं जो कि खेल खेल में आपको समझ नहीं आते, पर आपने खेल। और जब आप बड़े होते हैं, तब जब वो मेमोरी में वापस आते हैं, तब आपको अपने अंदर एक गिलानी महसूस, यू फील गिल्टी कि दैट आई वाज इनएप्रोप्रिएटली टच्ड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। When you start thinking on that pattern, what happens? You start developing a repression towards a male member. ये मेल सारे गंदे हैं, सब बेकार हैं, ये सब ऐसे ही उल्टे सीधे काम करते हैं। And I was, at that time I was mishandled, I was molested, my parts were, touched at that time, and he is a dirty person. My cousin is bad, my Mausa is bad, or my Poopa is bad because he touched me inappropriately. That means I have developed that aversion. I have developed that guilt. Now what is happening? जब मैं बड़ा होता हूँ, एडल्ट होता हूँ, तो उसके मेरे दिमाग में रिपरकशंस होने शुरू हो जाते हैं। Now जो कॉग्निटिव की आपने बात करी, तो कॉग्निटिव में हम यही चीज निकालने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ कब कब क्या क्या हुआ। तो जो ये मेरे साथ हुआ था, और जो उस टाइम खेल खेल में खेल बन के रह गया था, और बाद में बड़ेपन में मेरे को इसने तंग करा, तो हम उस इवेंट पे जाके अब हम क्लाइंट से पूछते हैं कि हाउ डू यू वांट टू टेक रिवेंज ऑफ दैट, हाउ डू यू वांट टू चेंज इट। The client has to tell. Therapist never tells that. So there are 3 options in front of the client. 1, I want to take a revenge. I was a child at that time. I couldn't take a revenge with my uncle because he misappropriately touched me and I felt very bad about it. My uncle was very big. I was too small a child to even tell to my mother or even tell to my father. But then that thought process is still there. That is one option. Second option is, okay, that was my childhood. I don't want to remember it. I want to completely forget about it. Third option is, it never happened with me. I don't want to have that recollection that anything such thing happened with me. So these are the 3 options which are there with the client tells me that I want to do this. So I will take the client to trance, talk to the subconscious mind, take the client to that date of that event when that took place. And now if the client has decided that I want to take an act, revenge, okay, I will grow you, your body will become bigger, then the bigger, more bigger than of the other person, and you start beating and hitting and abusing. Why?
बिकॉज दैट एंगर इज देयर इनसाइड, दैट एंग्विश इज देयर इनसाइड, कि अगर मैं उस टाइम बड़ा होता तो मैं अपने आप को बचा सकता था, मैं इसको मार सकता था, मैं इसको हिट कर सकता था, पर मैं छोटी सी थी इसलिए मैं नहीं कर पाई. So I make that anger vent out, the emotions to be vented out. Once I have vented out my emotions, what happened? I have taken my badla. I have balanced out my karma, which were there. So once I have taken my action, I am satisfied. And once I am satisfied, my subconscious mind says, oh, the case is closed now. Because that bad thing was done with me. Now a new thing that I have even taken my revenge. It has now, when I take that revenge in the trance session, that event is recorded in my subconscious mind. And once that is recorded in the subconscious mind, then the subconscious mind will not tap into the previous event and the guilt. ये लास्ट वाली चीज आप हिंदी में बताएंगे सर एक बार, ये बहुत इम्पोर्टेंट. Yes. जब मेरे को पता चला कि मेरी लाइफ में बचपन में मेरे साथ ऐसा एक दुष्कर्म हुआ था, पता चल गया कॉग्निटिव सेशन में, उसके बाद मैं क्लाइंट को ट्रांस में लेके जाऊंगा और ट्रांस में मैं उस स्टेज पे लेके जा सकता हूं जिस स्टेज पे मैं सबकॉन्शियस माइंड से बात कर सकता हूं. कॉन्शियस माइंड को अलग कर देता हूं क्योंकि कॉन्शियस माइंड जजमेंटल. फिर मैं सबकॉन्शियस माइंड से बात करता हूं और उससे पूछता हूं कि तुम अपना बदला कैसे लेना चाहते हो. तो 3 ऑप्शंस हैं, 3 विकल्प हैं. एक, मारपीट के, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटा था, मार नहीं सका कि अपने आप को बचा नहीं सका. दूसरा, मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं. तीसरा, मैं उसको फॉरगिव करना चाहता हूं कि ठीक है, हो गया, अब क्या करना है, मारपीट करके उसको फॉरगिव कर देते हैं. तो क्लाइंट बताएगा कि मेरे को कौन सा विकल्प यूज करना है. सपोज क्लाइंट कहता है कि मेरे को तो बदला लेना है, मेरे अंदर आग लगी हुई है उससे बदला लेने की, राइट. सो देन आई विल टेक हिम टू दैट पॉइंट. मैं उसको उस दिन ट्रांस में लेके जाऊंगा, उस जगह पे जहां पे वो इवेंट हुआ था. ही विल रिमेम्बर एवरीथिंग, उसको सारा विजुअलाइजेशन है. व्हाइट लाइट को बुला के मैं उसकी बॉडी का साइज बड़ा कर दूंगा ट्रांस में. उससे कहूंगा कि विजुअलाइज कि तुम एक बहुत बड़े आदमी हो गए हो, बहुत बड़े इंसान हो गए, तुम्हारी बॉडी बहुत पावरफुल है, और अब इस पावरफुल बॉडी से अपना बदला लो इस आदमी से जिसने आपके साथ गलत काम किया. इसको मारो, पीटो, डंडे से मारो, हड्डियां तोड़ दो, जब तक कि वो तुमसे माफी नहीं मांगे कि मैंने आपके साथ गलत काम करा और मैं इसके लिए जिम्मेवार हूं और मैं तुमसे माफी मांगू. क्या हो रहा है कि इसको करवाने से उसके अंदर जो आक्रोश भरा हुआ, मुझे उसे निकालना, और वो फिर ये सोचेगा कि मैंने अपना बदला ले लिया, उसने मेरे साथ गलत काम करा था, आज मैंने उसकी हड्डी पसली तोड़ के बराबर कर दी, बस चैप्टर क्लोज, कहानी बंद. तो जब ये कहानी बंद हो जाती है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको टैप करना बंद कर देता कि तुम्हारे साथ ये गलत काम हुआ था. और जब सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम बात कर रहे हैं ट्रांस में, तो ये जो नई कहानी मैंने गढ़ी मारने पीटने की, वो वहां लिखी, और जब वो लिखी गई तो बदला खत्म हो गया, कहानी बंद हो गई, चैप्टर खत्म, बुक बंद. उसके बाद से उसको उस चीज का ना तो गिल्ट रहेगा, ना आक्रोश रहेगा, और ना कोई उसकी सोच रहेगी. सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू टेक हेल्प अ क्लाइंट, उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी पावरफुल. बिल्कुल सर. और आपको शायद पता नहीं, याद होगा नहीं होगा, मैं एक कॉग्निटिव सेशन ले रही थी एक और स्टूडेंट के साथ, एंड उसका प्रॉब्लम था, ऑडियंस से सुन सकते हैं कि किस तरीके से हमारा माइंड हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम को कवर करके रखता है. डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा. हाँ हाँ. तो उसने क्या किया, वो मुझे बोल रही थी कपिला कि कॉग्निटिव सेशन चल रहा था 1-1.5 घंटे का. मैं उस कॉग्निटिव सेशन में प्रॉब्लम क्रैक नहीं कर पा रही थी कि कहाँ से आ रही है.
कि वो बोल रही है कि मुझे लड़कियों के बीच में मैं बात नहीं कर सकती, और वो उस टाइम उसकी उम्र रही होगी 24 साल। मैं बात नहीं कर सकती कपिला, एंड मैं बोल रही हूँ क्यों नहीं बात कर सकते, बचपन कैसा रहा, जैसे आपने हमें सिखाया। मुझे याद है उस कॉग्निटिव सेशन में आप आए थोड़ी देर बैठने के लिए, और आपने बोला कपिला इससे अब्यूज के बारे में पूछो। एंड उसके बाद मैंने अपना लाइन ऑफ क्वेश्चन बदला उसके साथ, और मैंने पूछा तुम्हारा कभी कोई अब्यूज हुआ था क्या? एंड दैट टाइम उसने पूरा मुझे बताया कि कहाँ पर, किस एज में, किस कजन ने कब किया था, कब, और बहुत छोटी थी वो। और जब उसके बाद मैं उसको ट्रांस में लेके गई, उसने खुद को, अपने आप को उस छत पे देखा जहां पर वो खड़ी थी, उसका कजन खड़ा था, शायद वो केजी क्लास या फर्स्ट क्लास में रही होगी। और 24 साल की उस लड़की को याद था कि उसने अपनी मदर को बताई थी, और मदर ने उस बात को नहीं सुना, या नहीं, उस टाइम उसको बिलीव नहीं किया। और वो इतना उसने होल्ड करके रखा इतने सालों तक इस बात को, कि उसको अपने अंदर ना कुछ कमी लगती थी, इसलिए वो कभी भी लड़कियों के ग्रुप में जाके खड़ी नहीं हो सकती थी। सो तभी मनोज जी बोल रहे हैं कि जो TYT TYL है, टॉक योर थॉट्स, बिकॉज जहां तक मैंने पढ़ा है और समझा है कि कॉन्शियस माइंड कुछ मिनट तक ही आपसे बात कर सकता है। जब हम, जिसको हम कॉग्निटिव सेशन बोलते हैं 1.5 घंटे का, जब हम उस पर्सन से बात कर रहे होते हैं, वो 15-20 मिनट बाद जजमेंटल माइंड से बात कर ही नहीं सकता। वो अंदर की अपनी सारी बात बाहर निकालता है। एंड बहुत ब्यूटीफुल होते हैं कॉग्निटिव सेशन। हमें खुद को भी इंट्रोस्पेक्ट करने में कितना मदद करते हैं, कि हम, जैसे सर ने बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म होता है, कि मैं अपनी नजरों में अच्छी बनी रहूं, मेरे में कोई कमी नहीं है, जैसे मनोज जी बोलते हैं। हम इसीलिए झूठ बोलते हैं, प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि मैं सुनना ही नहीं चाहती, एडमिट ही नहीं करना चाहती कि मेरे में कोई कमी हो सकती है। इसलिए TYT TYL से हम बचते हैं, वॉइस मेल सेवक को भेजने से हम बचते हैं, कि मैं क्यों एडमिट करूं मेरे में कोई गलती है, राइट? सो नहीं, दैट्स मेरा ये देखिए ह्यूमन नेचर है, मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा रोजी पिक्चर प्रेजेंट करना चाहता हूँ दूसरों के सामने। अब उस रोजी पिक्चर को प्रेजेंट करने के लिए मेरा डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? आपने ये देखा आजकल ये जो स्टैंडिंग कॉमेडी करते हैं, या पहले सर्कस में जोकर होते थे। जोकर क्यों बनते हैं? वो आपको हंसाते हैं, वो एक्चुअली हंसा नहीं रहे हैं, वो अंदर से जो जले हुए हैं वो खुशी ढूंढ रहे हैं। और जब आप हंसते हैं तो वो भी खुश होते हैं साथ में। और क्यों हंसाते हैं आपको? इसलिए हंसाते हैं आपको कि आप कहीं उनसे बात करके उनके अंदर के इमोशंस को जान ना पाए, जो उनके साथ आप बीती है लाइफ में, उसको डिफेंस मैकेनिज्म से ढकने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ा विकल्प हम लोगों के अंदर है कि हम अपने आप को एक अंदर से कुछ है और ऊपर से दूसरी पिक्चर पे पेंट करके चलते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसमें मैं दो जवाब देना चाहूंगा, 1 मिनट। डज एवरी पर्सन कैन बी हिप्नोटाइज? नो। 95% ऑफ द पीपल कैन बी हिप्नोटाइज। 5% फिर भी ऐसे निकलते हैं जो कि हिप्नोटाइज नहीं हो पाते। सेकंड सवाल ये है कि वॉट एवर हैपन्स इन हिप्नोथेरेपी, विल आई रिमेंबर इट आफ्टर द सेशन? यस, यू विल रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट हैपेंड इन सेशन, व्हाट यू सॉ इन सेशन। इसी वजह से बिना किसी पर्पस के हम पास्ट लाइफ में नहीं लेके जाते। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि अगर पास्ट लाइफ में बिना किसी पर्पस से ले गए और एक कोई ट्रोमैटिक लाइफ खुल गई तो वो तो करंट लाइफ इशू बन जाएगा आपका, बजाय कुछ हेल्प करने के और मैंने आपकी लाइफ खराब कर देनी। सो यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। जो भी आप देखेंगे सेशन में, यू विल सी, यू विल रिमेंबर, सब कुछ याद रहेगा। आपने क्या देखा था, क्या बोला था, आपको क्या हुआ था। So there is one question right now Pradnya ji ने पूछा है, till how many lives can I remember in this process and how does this process takes us exactly in that situation? देखिए, एंजाइटी एक अलग चीज है। एंजाइटी क्यों है उसका कारण जान के हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और जब आप पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरी ये जो करंट लाइफ है कौन सी लाइफ है। ये दूसरी भी हो सकती है, ये 1000 वाली भी हो सकती है, और ये 10,000 वाली भी हो सकती है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं कौन सी लाइफ में हूँ। हाँ, ट्रांस में जब पास्ट लाइफ में ले जा सकते हैं तो हम पूछ सकते हैं कि आप ये कौन सी लाइफ में आए।
तो मैं सारी लाइफ नहीं देख सकता, एक सेशन में एक लाइफ को जरूर देख सकता हूँ ठीक से। तो इसलिए ये सवाल बहुत मुश्किल है आंसर करना कि मेरे जब मैं पास्ट लाइफ में गया तो मेरी कौन सी लाइफ थी या मैंने पीछे कितनी लाइफ जी चुका हूँ। ये और एक क्वेश्चन है यहाँ पे दैट हिप्नोथेरेपी डिफरेंट फ्रॉम एनएलपी। यस, एनएलपी अलग चीज है, हिप्नोथेरेपी टोटली अलग चीज। एनएलपी तो बेसिकली कॉग्निटिव कॉन्शियस माइंड पे काम करती है, हिप्नोथेरेपी सबकॉन्शियस माइंड पे काम। एनएलपी बेसिकली कि मेरी अपनी बॉडी मूवमेंट, मेरे अपने आईज के जेस्चर, मेरे हाथ के जेस्चर, मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, दिस इज व्हाट एनएलपी इज। ये कॉन्शियस लेवल पे काम करती है, ये हीलिंग नहीं दे सकती एनएलपी। ओके, मेरा कुछ क्वेश्चन था जो पहले के हमने टॉपिक स्क्रिप्ट, लाइफ की स्क्रिप्ट, उसके जी बारे में कुछ समझना चाहता हूँ। बेसिकली जैसे आपने कहा कि हर कोई आता है तो स्क्रिप्ट लेके आता है, सो जी वन स्क्रिप्ट इज देयर, अनदर स्क्रिप्ट इज आल्सो पैरेलली इट इज देयर जी एज अ ऑप्शन, जी राइट? सो माइट पीपल विल फाइंड इट इज स्टूपिड क्वेश्चन, बट इज देयर एनी वे कि हम उस पर्पस को जान सकते हैं बहुत जल्दी? क्योंकि जिंदगी लोगों की निकल जाती है वो पर्पस जानने के लिए, तो तो सवाल पूरी ये जिंदगी सब लोग सवाल ये पूछते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाई एम आई हियर इन दिस वर्ल्ड। यस, सारी सारी उस पिन पॉइंट पे अटकी हुई है सारा कुछ। राइट। नहीं, जो आपने कहा कि हम हो सकता है पास्ट लाइफ में जाके पर्पस निकाल सकते हैं कि इस लाइफ का मेरा पर्पस क्या है, अच्छा, पास्ट लाइफ में जाके निकालेंगे। क्योंकि लाइफ स्क्रिप्ट जो बनती है मेरे पिछले कर्मों के बेस पे बनती है, किस लाइफ में मुझे किससे लेना है और किससे देना है, मैं सब उन्हीं लोगों से मिलूंगा। हम जितने लोग आज 147 लोग अभी हैं यहाँ पे, हमारा कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा होगा, तभी आज हम साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं इस सेशन को अटेंड कर रहे, नहीं तो हम नहीं करते। सब लोग अपने में बिजी हैं, पर कहीं ना कहीं कोई मेरे साथ इस सबका लेना देना है, जिसको कि मेरे को उन्होंने सुन के अब घर कुछ ले जाना है, इसलिए वो साथ जुड़े हैं। यही पास्ट लाइफ और कार्मिक साइकिल है। और इसी के बेस पे अब जैसे मैंने आपको बताया, मैंने क्या नहीं लाइफ में ट्राई करा, डॉक्टर बनना था, नहीं बना, अंदर इच्छा थी ना, मेरा दिमाग कहता था डॉक्टर बनना है, पर मन कहता था नहीं, तुम डॉक्टर लायक नहीं हो, ये तुम्हारी लाइफ स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कंपनी में कॉर्पोरेट में जॉब करी, MIS का करा, कंप्यूटर सिस्टम्स करे, कहा सी दैट इट शिफ्ट। उसके बाद मैं सीधा एक ज्वेलरी बिजनेस में, एक्सपोर्ट बिजनेस में चला गया, जिसका कोई लेना देना नहीं, कभी सीखा ही नहीं। सो अल्टीमेटली पर्पस ऑफ द लाइफ वाज कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। पर बिजनेसमैन बनने से पहले मेरे को मैनेजमेंट कैसे करना है उसको वो सीखना है। तो वो कैसे सीखा? पढ़ाई करके सीखा और कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करके ये सीखा कि एक बिजनेस को कैसे चलाया जाए। सी लिंक, अंडरस्टैंडिंग। सो पर्पस कहाँ निकला? मुझे बिजनेस करना है, पर उस बिजनेस करने से पहले मेरे को ये सब काम करने जरूरी है जिससे आई कैन बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, नंबर 1। नंबर 2, बचपन में जो हीलिंग की, डॉक्टर का काम क्या है? हील करना है ना। तो मैं डॉक्टर बन के हील नहीं कर रहा, तो मैं आज थेरेपी से हील कर रहा हूं लोगों की। तो वो हीलिंग इज ऑल्सो माई पर्पस, बिकॉज बचपन से मैंने बहुत सारी संस्थाओं के साथ सोशल सर्विस करी है, लोगों को हीलिंग दी है। तो पर्पस तो मेरा डिफाइन हो गया ना, हीलिंग एंड टू रन अ प्रॉपर बिजनेस, दैट इज माई पर्पस। So this I can definitely find out when I'll take a person into past life to find out what is the purpose of this person to be like this in this life. Number 1. Secondly, very important, what is the alternate life available with me?
अगर आज मैं जो कर रहा हूं उसमें सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मेरे को एक ये डायरेक्शन भी मैं ढूंढ सकता हूं कि दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो मैं करके अपने लाइफ को ठीक, सुदृढ़ और अच्छी बना सकता हूं. आई कैन फाइंड दैट ऑल्सो. दिस इज द पावर ऑफ एवरीथिंग. वाह, दैट्स सो वंडरफुल. लाइक काफी, अगर इतना इजी है कि हम जान सके हमारा पर्पस, सो उसके ऊपर फोकस करना बहुत इजी हो जाएगा उस चीज की वजह से. एंड पर आई उसमें टेल पर यू उसमें एक चीज बहुत जरूरी है. हम्म You have to be truthful. नंबर 1. नंबर 2, जान के अगर आप आगे काम नहीं करेंगे तो जानने का कोई फायदा नहीं. करेक्ट. You have to bring a change in yourself. हम्म. See, you can change the world, but you cannot change yourself. That is where the problem comes in. So unless you bring a change in yourself, nothing is going to change. That's very true. Change is to change. And I share one example with you, Vijay ji, for this also, जो सर ने बताया parallel life. So one lady got in touch with me in Australia. She was struggling in some marital issues. Very famous family lady. And she happened to flew down to India during Christmas. And real thing, मतलब this was just before the lockdown. She came down और उसने 25 दिसंबर के बाद हस्बैंड को बुला रखा था डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए. She came for hypnotherapy. एंड उसमें हमने पैरेलल लाइफ देखी सुनील सर उसकी, कि इफ शी मूव्स टू सम अदर पर्सन, उसकी एक डॉटर भी थी उस टाइम, तो हाउ द लाइफ वुड बी. एंड आफ्टर 2 सेशंस शी सेड आई डोंट वांट टू गेट डिवोर्स. एंड उसी टाइम पे उसको पता चला, उसने जब अपने हस्बैंड को इंडिया बुलाया हुआ है, उस टाइम कोर्ट बंद होते हैं, फैमिली कोर्ट्स. So these are 2 signs I have got not to go ahead with this divorce. And today she has the other child. मतलब उसका बेटा भी हो गया with the same husband. And that's powerful. But yes, she worked on her marriage. जैसे सुनील सर ने बोला, सिर्फ देख लेने से, समझ लेने से, जैसे मनोज जी बोलते हैं TYT TYL किया, या कोई भी आपने चीज अपने बारे में जान ली, उसको अगर आप प्रैक्टिस में नहीं डालोगे. हमारा एक सिस्टम है सर, लिया मैसेज का, रोज हम उसमें लिखते हैं क्या मेरे मुताबिक नहीं किया, उसको मैं कैसे वाव और थैंक यू बोल सकता हूँ, और मैं कैसे अपने विजन्स रोज पढ़ूं, कैसे मैं व्हाट वाई हाउ ढूंढूं अपनी लाइफ का. बट इट्स अ एवरीडे प्रैक्टिस. मनोज जी हैज नीड अ सिस्टम फॉर ऑल ऑफ अस, ताकि वो सिस्टम से हम थोड़ा थोड़ा रोज हम रीवायर करें जो एक्चुअल पर्पस है. एंड पर्पस को लेके मनोज जी हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी देते हैं सुनील सर, की somebody से nobody तक तो एक लेवल आ जाता है. अब मैं अपने आप में खुश हूं, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, वो चाहे tangible है या नॉन tangible है. What about others? So I think that really expands your horizon also, and that's what we all do. And now it's time to call Reena ji also. And I think some of your students have also joined, or maybe the people who you have healed or someone. So if you can raise your hand, it will be very easy for me to spotlight you. Yes, Reena. Yeah, please unmute yourself. Yes. Hello, everyone. Yes, Reena. So I met Reena. I think I spoke to her on phone. सर को ज्वाइन करने से पहले तो मुझे लगा था रीना सिखाती है. फिर मैंने रीना से बात की तो रीना से नहीं सर सिखाते हैं. एंड मैंने अभी तक इतना डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर नहीं देखा है. एंड बहुत पोलाइट, वेरी नाइस पर्सन. एंड आई थिंक आई कैन नेवर फॉरगेट द लंच शी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज. एंड मैंने कुछ सेशन रीना के साथ भी लिए हैं. सो शेयर योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद सर. कैसा रहा, कैसा है? I would say like it was my destiny to meet sir, and like I was a housewife before coming into this. हिंदी में हो सके तो. हाँ, so hypnotherapy में आने से पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, एक डेडिकेटेड हाउसवाइफ. कभी सोचा नहीं था, मतलब मन में चाहत थी कि दूसरों की हेल्प करना. जैसे मैं बहुत अच्छी थी एक्यूप्रेशर देने में, या आई हैड अ हीलिंग हैंड्स, मतलब किसी को सिर दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ है तो उनको फायदा होता था, और मुझे अच्छा लगता था किसी की सेवा करना या हेल्प करना. दैट इज इट. और कुछ करना चाहती थी जिंदगी में, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली बिकॉज ऑफ वेरियस सिचुएशंस. कभी हस्बैंड के ट्रांसफर्स, कभी कुछ कभी कुछ. फिर जब मेरी बेटी कॉलेज गई, उस वक्त आई वॉज गोइंग थ्रू एम्प्टीनेस सिंड्रोम.
क्योंकि कुछ करने को नहीं था, जिंदगी खाली हो गई थी। एंड उस टाइम पे आई हैड अ चांस मीटिंग विद हिप्नोथेरेपिस्ट, और वहां से मेरी जिंदगी शुरू हुई। और सर मिले। सर की वाइफ एक बहुत अच्छा बुटीक चलाती हैं, मतलब वो एक हाई एंड बुटीक है जहाँ पे वो बहुत सुंदर चीजें क्रिएट करती हैं। मैं वहां गई थी और मुझे सर मिल गए। एंड हमारी पास्ट लाइफ भी है, लाइक आई वाज हिज डॉटर इन वन ऑफ द पास्ट लाइफ, इन वन ऑफ माई पास्ट लाइफ। और जब मैं सर से मिली तो कई बार मुंह से पापा निकल जाता था, तो मेरे सबकॉन्शियस में तो वो मेमोरीज थी पापा की, और वही फीलिंग रही सर के साथ। और बहुत सीखा। और मेरा जर्नी शुरू हुआ 2016 में। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत कुछ सीखा। एंड जो सेशंस हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस। मतलब जब आप किसी को हील करते हो, यू ऑल्सो हील समवेयर, यू नो, विद इन। एंड हमारे क्लाइंट्स भी हमें बहुत सिखाते हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी। So, और हर तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, पास्ट लाइफ के, फ्यूचर प्रोग्रेशन के, एस्ट्रल ट्रैवल के, होम स्टेज के, मतलब हर चीज के हमें हिप्नोथेरेपी के थ्रू एक्सपीरियंस होते हैं। सो माइंड इज सो पावरफुल ना, कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। जो आप बोल रहे हो कि वो फ्यूचर भी देख सकता है, पास्ट को रीवायर भी कर सकता है, और आपका प्रेजेंट भी आपको एक ऑल्टरनेट पैरेलल दिखा सकता है। एंड सर ने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर कोई इशू नहीं है, मेजर इशू, तो आपको बार बार हिप्नोथेरेपी कराने की जरूरत नहीं है। और उसका एक स्मॉल वर्जन जैसे हम लोग खुद करते हैं कि खुद से बात कर करके अपने उस पैटर्न को पकड़ो और उसको रीफ्रेम करते चले जाओ। तो सर के अगर और कोई स्टूडेंट्स या लोग हैं जिनको हील किया है, आई रिक्वेस्ट देम टू रेज देयर हैंड लाइक दिस इन द रिएक्शन बॉक्स। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर, आपको कोई और स्टूडेंट हो। एंड आई रिमेम्बर मैंने रीना से बाद में भी सेशंस लिए, और मैंने बहुत तंग किया है रीना को। It was always a pleasure. एंड आई टोटली एग्री विद दिस कि आई हैड सम रिलेशनशिप इश्यूज, जिसको लेके मैंने रीना से बहुत बात करी, एंड शी रियली हेल्प मी इन दिस टेकिंग सर्स गाइडेंस। एंड पर एक बात है कि आपको कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम करना पड़ता है। वो जो उस टाइम का ट्रिगर था, उस टाइम का जो था एक लो टाइम, दैट इज स्टिल वो काफी लंबे टाइम तक चला, और उसके बाद आई केप्ट वर्किंग ऑन इट, एंड दिस प्लेटफॉर्म रियली हेल्प मी अ लॉट। सो आई एम यस पंकजा, यस आप करिए। Yes, yes. Yeah, I'm able to speak. All right. Hi, everyone. So, Dr. Pankaja this side. I'm practicing here in Gurgaon. Hi, Kapila. Nice to meet you, and thank you, sir. Seeing you again here, and it's wonderful experience. I always seeing you, the vibrant face of sir, and the pretty Reena is also. So she is very coordinate, and she is very, cordial with everyone. So thank you, Reena. Here, I would like to share my journey with sir or about hypnotherapy. So I was just a simple psychologist. I did my MPhil and PhD, and I'm practicing. And once आप I हिंदी got में a बात कर chance, सकते हैं, हिंदी में बात हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं हरियाणवी में भी कर सकती हूँ। वेरी गुड। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग पंकज, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट, मेरे ग्रुप में 2 साइकोलॉजिस्ट भी थे जो हिप्नोथेरेपी सीख रहे थे। Okay. MBBS, नॉट साइकोलॉजी, आई थिंक साइकाट्रिस्ट थे, डॉक्टर राजीव। तो आप उसके बारे में बताइए कि हाउ साइंस स्टूडेंट्स आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम हिप्नोथेरेपी। या प्लीज। Yeah, so it was really powerful when I learned that, and I used at least 10 to 15 like of my client. मतलब मैंने एक ही महीने के अंदर 10 से 15 क्लाइंट्स पे किया था। मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि किसी ने चैट बॉक्स में आंसर पूछा था कि छोटे बच्चे के ऊपर किया जा सकता है क्या। सो आई डिड। एक 13 इयर्स का बच्चा था, और उसने जॉम्बी मूवीज बहुत ज्यादा देख ली थी लॉकडाउन में, एंड हिज पेरेंट्स आर बोथ आर डॉक्टर, रिनॉन डॉक्टर, और मैंने उनके ऊपर किया था। और उसका जितना भी फियर था जॉम्बी मूवी को देख के, जो भी उसके ऊपर विजुअल्स भी आ गए थे उसको, जैसे जॉम्बीज के फेस होते हैं, आफ्टर 4th सेशन इट वाज इनविजिबल एंड ही वाज फाइन। ही वाज लाइक ही वाज इन द रिलैक्सेशन मोड एवर, मतलब बहुत अच्छा उसको लगा था। और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट हैं जिनको हीलिंग दी है हिप्नोथेरेपी ने। बहुत सक्सेसफुल रेट रहा है मेरा, मतलब आई एम थैंकफुल टू द सर। और मैंने रिग्रेसली वर्क किया अपने क्लाइंट्स के ऊपर। तो मैं
एटलीस्ट 1 और 2 सेशन हिप्नोथेरेपी की रखती हूँ, तो हील हो गए आदमी। सीबीटी जो आप बात कर रहे थे कपिला, कि मैं आप सीबीटी करते हैं, विच यू हैव टोल्ड अभी बच्चों को, जिसको भी स्टूडेंट्स को, कि सीबीटी करने से आदमी को ना कॉग्निटिव अवेक हो जाता है। कपिला, आर यू देयर? Yes, I'm हेलो। hearing you. Yes, 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 तो yes. सीबीटी मुझे हम्म, लगता है केस हिस्ट्री के बाद आप हिप्नोथेरेपी कीजिए, उसके बाद सीबीटी दोबारा कीजिए, तब आपको चेंजेस मिलेंगे उनकी बातों में। हम्म, कि एक बार आपने सीबीटी कर लिया, लाइक व्हाट यू वांट, व्हाई यू आर हियर, व्हाट वाज योर रिग्रेशंस, व्हाट वाज द पास्ट। उसके बाद जब आप दोबारा से हिप्नोथेरेपी करके करेंगे, उससे दोबारा सीबीटी करने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा बहुत सारे इश्यूज तो चले ही गए हैं। that's इट्स लाइक अ मिरेकल, मतलब इट हेल्प मी अ लॉट विद माय क्लाइंट्स। yes. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you, Pankaja. थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। यस, बिकॉज आप उस बैकग्राउंड से आ रहे हो जहाँ पे हम लोग को लगता है कि नहीं, मेडिसिन ओनली वर्क। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो लोग जनरली मेडिसिन को यूज करते हैं, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मैंने अपने ग्रुप में, आई थिंक देयर इज वन, कोई बहुत फेमस दिल्ली का हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, वहां से यास्मीन, इफ यू रिमेम्बर, रीना मस्ट हैव रिमेम्बर्ड, यास्मीन आई थी वहां से, एंड देयर वर अदर पीपल ऑल्सो, जो ये सीखना चाहते थे कि हम अपने क्लाइंट्स जो आते हैं उनको कैसे हिप्नोथेरेपी में ले जाके डीप डाउन नॉलेज पता करें, चाहे उसके बाद हमें मेडिसिन ही लिखनी पड़े। सो दैट वाज अ वेरी हिप्नोथेरेपी न्यू एंड कैची थिंग। या इट्स अ रूट कॉज ना, लाइक रूट कॉज जहां से पकड़ में आ गया, अब आपको पता लग गया कि ये रूट कॉज है, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपने वो उसको फिर एक एंकर देना है, तो मतलब जो भी सर ने सिखाया आपने भी सीखा है, तो अब बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम आप फर्स्ट सेकंड सेशन में दे देते हैं, जबकि एज ए साइकोलॉजिस्ट हम 8th और 7th सेशन में वो जो उनको सॉल्यूशन दे पाते थे, वो अब दूसरे और तीसरे सेशन में ही दे देते हैं। करेक्ट, करेक्ट, दैट्स CBT is a cognitive behavioral therapy. Someone is asking, yes, it's a राइट। cognitive behavioral therapy, which is very effective as a psychologist. यस, एंड उसका शॉर्टर फॉर्म इज TYT TYL। Okay, that's why I was asking who is Manoj sir. So I just want to know about him. I यस, have wrote in my chat box as well. यस। तो सुनील सर का नंबर बहुत लोग मांग रहे हैं, रीना प्लीज एक बार लिखिए सर का चैट बॉक्स में, फॉर एवरीवन यू कैन राइट सुनील सर, या मैं शेयर कर दूं? आप शेयर कर दो ना कपिला। ठीक है, मैं शेयर मैं- करती हूँ। आई एम आस्किंग अदर्स, किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चंस के लिए, आप यू कैन रेज योर हैंड इफ समबडी हैज एनी क्वेश्चन कि हिप्नोथेरेपी क्या है, कैसे यूज होती है और कैसे वो ले सकते हैं इसको। यस प्रतीक। या हाय, मेरा सवाल ये है कि in my life, since I think during my childhood days I always had the lot of lack feeling, lot of fear and doubt energy तो बाद में आई, but under confidence always fear parents के साथ also कभी studies में कभी अच्छा नहीं हुआ, and then suddenly of course things change and things are way too better now. But the thought always is that lack feeling और fear वाली जो है ना, वो हमेशा thought रहती ही रहती है। मतलब कितना भी it does come and then again I keep releasing, तो ये होता क्यों है? मतलब then why you keep going back to those ill feelings as you call it, in terms of fear, lack, doubt मेरी feeling कभी मतलब बार बार आती रहती है। प्रतीक, And कहीं in ना कहीं different relationship, fear in different relationship, fear of office. नहीं, बात वही हो गई, बचपन में कोई ना कोई आपका और आपके पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप रहा है, आपको प्यार मिला नहीं मिला, वर यू सेटिस्फाइड, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि कॉग्निटिव का सेशन ही ये होता है कि हम आपका बचपन स्टडी करते हैं कि बचपन में आपका कैसा व्यवहार रहा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, स्कूल में कैसा रहा, स्कूल में बुली हुई आपकी नहीं हुई, तो वो सब चीजों को स्टडी करना पड़ता है। आप इंट्रोवर्ट थे, आप एक्सट्रोवर्ट थे, क्या आपका नेचर रहा है। तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है सजेस्टेबिलिटी का, तो सजेस्टेबिलिटी आपकी इंट्रोवर्ट की थी या एक्सट्रोवर्ट की थी, तो इस तरह बहुत सारी चीजें पहले हमें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ती है। हम जो है ना, जैसे आजकल पॉलिटिकल सर्कल में ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं ना, तो हम लोग भी आपके ऊपर जो है, आपकी लाइफ के ऊपर सीबीआई के छापे डालते हैं। वो सीबीआई का छापा क्या है कि हर डिटेल, माइन्यूट डिटेल निकालते हैं और फिर उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि इस वजह से आपको ये अंडर कॉन्फिडेंस है, अंडर परफॉर्मेंस है,
तो ये इन सब रीजंस की वजह से। एंड अगर ये पता चल जाता है उसके बाद इज दैट ये जो फीलिंग्स हैं ये रिजॉल्व हो जाती है बिल्कुल completely कि 100% बार आती रहती है? 100% रिजॉल्व हो जाती अच्छा, 100% रिजॉल्व हो जाती है। है। हाँ, नहीं तो फायदा क्या फिर? अगर उसने देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दी साइकोलॉजिस्ट हियर यू नो एंड द साइकियाट्रिस्ट हियर, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट में ये चीजें रीसर्फेस अप हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वो ट्रिगर पॉइंट उनका गया नहीं। हिप्नोथेरेपी में हम वो ट्रिगर पॉइंट को टैप करते हैं और उसको रीफ्रेम कर देते हैं। तो जब वो ट्रिगर पॉइंट होगा ही नहीं तो फिर आपको रीअकरेंस के चांसेस बहुत बेयर मिनिमम है। ये नहीं कहते कि 100% निकल जाती है, दे कैन अगेन कम बैक, बट देन चांसेस आर वेरी रेयर, यू नो। 95 to 99% आपका परमानेंट है। अंडरस्टूड। थैंक यू। नहीं, अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू। यस प्रकाश जी। के प्रकाश इज देयर, यू नो। हाँ, सुनील प्रकाश जी, मैं ये डिफरेंस जानना चाहता था कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फर्क है? साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट कॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं और हम लोग सब कॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड, सी आप जो जजमेंट लेते हैं लाइफ के या जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, वो कौन डिसाइड कर रहा है? आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या करना है। अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। लोगों को सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? सिगरेट मत पियो, लंग्स खराब हो जाएंगे, ठीक है। जो डॉक्टर सलाह दे रहा है पेशेंट को, वो खुद भी तो सिगरेट पी रहा है, वो नहीं छोड़ पाता। आप समझे ना? क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड के लेवल पे काम कर रहा है। हम लोग के पास जब वो क्लाइंट आता है तो हम सिगरेट स्मोकिंग की उससे बात ही नहीं करते। थेरेपी साइकोथेरेपिस्ट कहेगा कम कर दो, छोड़ दो एकदम से। हम तो सिगरेट स्मोकिंग की बात ही नहीं करेंगे उससे। हम उसका रूट कॉज निकालेंगे कि उसने सिगरेट पीनी शुरू क्यों की, और उस रूट कॉज पे काम करेंगे, ना कि सिगरेट पे काम करेंगे। क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग कॉम्प्लीमेंट्री है किसी एक ट्रॉमेटिक इवेंट को लेके। तो जब हमने उसको साथ अटैच ही नहीं करा सिगरेट स्मोकिंग को, और उसका जो ट्रॉमेटिक इवेंट है उसको बदल दिया, और जब बदला तो उसमें सिगरेट स्मोकिंग का कहीं जिक्र नहीं है, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे बॉडी को मैसेज नहीं भेजेगा कि इसको सिगरेट की जरूरत है। तो सिगरेट छूमंतर हो जाती है। एक एग्जाम्पल है, रीना को भी पता है, हमारी क्लास में एक स्टूडेंट आई थी जिसको कि हर घंटे में सिगरेट पीना था। उसका सेशन लिया हमने। अगले दिन वो सिगरेट का पैकेट लाना भूल गई। मैंने पूछा उससे, आज बाहर नहीं जा रहे हो सिगरेट स्मोकिंग के लिए? बोली मैं तो पैकेट लाई नहीं, मैं तो भूल गई। सी, इतना पावरफुल है हिप्नोथेरेपी। That's right. That's right. Thank you, Prakash ji. Yes, Varsha ji. There is one more, you know. Yes, one more in the row. हाँ, शराब भी छोड़ सकते हैं ललिता जी। Yes. वर्षा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। विजय जी, हाँ, यस। हाँ, नमस्ते जी। बहुत बढ़िया सेशन था। आपने बोला कि आप वो हम लोगों को हिप्नोटाइज करके और ट्रांस करके उधर लेके जाते, फिर वो सब मेमोरी रिलीज करके या कुछ वो फाइट करके ऐसा वो सब निकल जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो भी ऐड हो जाता है। और हम जब दोबारा वो हिप्नोटिज्म से बाहर आते हैं तो वो नॉर्मल स्टेज पे आके, लेकिन वो सब निकल जाता है फियर। वो बहुत बढ़िया था। आई लाइक दैट एंड वेरी यूजफुल फॉर सो मेनी पीपल टू कम आउट फ्रॉम दैट सम फियर्स। एंड अनदर थिंग, जैसा आपने बोला कि एडिक्शन का, मेरा ही सवाल का मेरे को ही जवाब मिल गया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं कि एडिक्शन का, जैसे आपने बोला कि मेरा एक इन लॉज के साइड से एक जन को एडिक्शन था पीने का, तो उनको हमने व्यसन मुक्ति केंद्र में 2 महीना रखा पूरा, लेकिन वो जैसे ही उधर से आए वो दोबारा उन्होंने पीना चालू किया।
तो मैंने शायद, मुझे ये भी लगा कि शायद उन्होंने उनका पूरा ट्रूथ उनके साथ शेयर नहीं किया होगा, मे बी दैट्स व्हाई ही कुडंट। वो मेरा आंसर मुझे मिल गया। लेकिन क्या आपका हिप्नोटिज्म उनके लिए वर्क कर पाएगा, तो हम उनको भेज सकते हैं आपके उधर? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है उसमें रूट कॉज पे तो जाते नहीं, आपको अच्छा। आपको शराब से दूर रखते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो जितनी देर रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहेंगे उतने दिन शराब नहीं पिएंगे, बाहर आते ही फिर शुरू कर देंगे, क्योंकि असली कारण शराब पीने का खत्म नहीं हुआ है। तो हम लोग तो असली कारण जानते हैं कि शराब क्यों पीनी शुरू करी और उसको खत्म करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि मेरे पास भेजने का, जो शराब का एडिक्शन हो जाता है वो थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको शराब अच्छी लगती है। जब तक उसको ये अंदर से महसूस नहीं होगा कि ये मेरे को बुरी लत लगी हुई है और मैं इससे छुड़ाना चाहता हूँ। अच्छा, उसको खुद को लगना है। उसको खुद को लगना चाहिए, तभी हम उसके सेशन लेंगे, नहीं तो हम उसके सेशन नहीं लेते। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। क्यों? कारण बड़ा सिंपल है, वो रूट कॉज बताएगा नहीं ना कि उसने शराब पीनी क्यों शुरू की थी। जी जी जी। तो जब बताएगा ही नहीं तो मैं उसको ठीक कैसे करूंगा? एग्जैक्टली। या गॉट इट, थैंक यू। All But right. Varsha, he has got some questions. Yes. So we will take this last question and then the sharing of the session. Yes, Deepak ji. Okay, yes, Deepak ji. Unmute करिए अपने आप को। यस, डॉक्टर सुनील जी नमस्ते। आपने जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करी है, इसमें मेरे को एक प्रश्न ये था कि जो फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपस में किसी की बनती नहीं है, पेरेंट्स की बच्चों के साथ, भाई बहनों की, और वो एनिमिटी का रूप ले लेती है कई बार, तो उसका क्या कारण है और कैसे उसको हील किया जा सकता है या डिसॉल्व किया जा सकता है? रिजॉल्व की जगह डिसॉल्व या रिजॉल्व? देखिए, डिसॉल्व और रिजॉल्व दोनों ही काम होने चाहिए। पहले रिजॉल्व होना चाहिए, फिर डिसॉल्व होना चाहिए। तो रिजॉल्व होने के लिए तो पहले समझना पड़ेगा कि एनिमिटी क्यों है, किस वजह से है, और मेरे अंदर कौन सी ईगो है जो कि मुझे अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। ओके। तो पहले तो मेरे को अपनी ईगो को किल करना पड़ेगा, और जब मैं ईगो को किल करके एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब दूसरे को भेजूंगा, तो उसके मन में भी एक थोड़ी सी वो आएगी कि मेरे को भी चेंज होना चाहिए। तो इस तरह पहले तो रूट कॉज देना पड़ेगा कि मेरे अंदर बचपन से ऐसी ईगो क्या है कि ये सब मेरा है, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। तो जब मैं अपना मन चेंज करूंगा कि ये मेरा नहीं है, ये सबका है, राइट, ठीक है ना, तो उसके बाद रिजॉल्व भी हो जाएगा और डिसॉल्व भी हो जाएगा। ओके। तो अगेन कॉग्निटिव इज इंपॉर्टेंट। मेरे को ये कहाँ से शुरू हुआ कि ये मेरा है? देखिए, डिस्प्यूट कहाँ है दोनों में? वो कहता है मेरा है, मैं कहता हूं मेरा है। मेरे को इतना मिलना चाहिए, वो कहता है मेरे को इतना मिलना चाहिए। करेक्ट। तभी तो डिस्प्यूट है ना। तो भाई उसका समाधान क्या है? चलो आपस में बराबर का बांट लेते हैं, पर उस बराबर का लेने के लिए मैं तैयार होना चाहिए। राइट। मेरे को वो बराबर का ना लेने की क्या कारण है जो कि मेरे को मजबूर कर रही है कि मैं झगड़ा तो कर लूं पर बराबर का लेने को तैयार नहीं। राइट। अपनी ईगो को मैंने आगे रखा हुआ। तो जब मैं अपनी ईगो खत्म कर दूंगा तो सारा कुछ रिजॉल्व एंड डिसॉल्व हो जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। यस। सो लेकिन ये पिछले जन्मों से भी आ सकता है जी? क्या ये कोई पास्ट लाइफ से आया हो, ऐसा भी हो सकता है? पास्ट लाइफ का तो बहुत बड़ा कारण है। ओके। क्योंकि मुझे कुछ लेना है और कुछ देना है उसका। तो पास्ट लाइफ से तो है ही है। पास्ट लाइफ से है ही है, बिल्कुल। तो क्योंकि वो मेरा अगर भाई बन के आया है पास्ट लाइफ से,
तो कुछ लेने के लिए या कुछ देने के लिए आया होगा ना मेरे को। देने बराबर। तो अगर मैं ये सोच लूं कि अगर मेरे को पास्ट लाइफ के कर्मा है जो रिजॉल्व करने हैं उसके साथ, और जो वो मांग रहा है शायद उसका ही हक है जो पिछली लाइफ में मैंने उससे छीना होगा, करेक्ट, तो दे देता हूं मैं उसे। राइट। आपकी जेब कट जाती है तो आप किसको दोष देंगे, काटने वाले को या अपने कुर्ते को? आपको काटने तसल्ली, वाले को, आपको खुद को तसल्ली दोष। किस चीज से मिलेगी कि शायद मेरे, देखिए सबसे बढ़िया तसल्ली इस बात से मिलती है कि शायद मेरे को किसी का ऋण देना था, उसने मेरी जेब हाँ, काट के मेरे पैसे निकाल लिए। राइट। तो जब मैं ये सोचना शुरू कर दूंगा हम्म, तो मेरे को मन में तसल्ली मिल जाएगी। करेक्ट। नहीं तो मैं अपने दर्जी को, अपने जिससे कुर्ता खरीदा था, मैं उन सबको दोष ही देता रहूंगा पूरी जिंदगी भर कि मेरे को हाँ, कुर्ता ऐसा बनाया, या मैं भीड़ में गया वहां जेब कतरे ने मेरी जेब काट ली, मेरे को भीड़ में नहीं जाना चाहिए था। तो मैं यही सब करता हूं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को स्ट्रेस दे रहा हूं, उसको अपने आप को स्ट्रेस स्ट्रेस। कर रहा हूं। ओके ओके, ठीक है ना? हाँ तो जी, उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए बेस्ट है, अरे भैया पिछले जन्म का कुछ था, वो आया था, वो मेरी जेब काट के अपने पैसे ले गया, छुट्टी हुई, मेरा लेन देन बराबर हो गया, लेन देन बराबर हुआ, तो मुझे शांति मिल गई ना। राइट तो राइट। अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया डॉक्टर सुनील, और इसके लिए भी एक बहुत सुंदर टूल है जो रात को हमें सोने से पहले मनोज जी ने दे रखा है। अगेन आई एम आस्किंग एवरीवन, राइट ऑन द चैट बॉक्स कि जो भी मेरे मुताबिक नहीं हुआ, रात को सोने से ही पहले, जस्ट बिफोर दैट, वी हैव टू रीवायर इट। यस, एक लोटस ग्रैटिट्यूड करते हैं, थैंक यू चोर आज मेरी जेब काट के ले गया, मुझे पता चला, मुझे और अवेयरनेस में रहना है, थैंक यू, उसका मेरा लेना देना खत्म। थैंक यू, आई नो हाउ टू बी थैंकफुल टू व्हाट डज नॉट हैपन माय वे। थैंक यू, आज ज्यादा पैसे नहीं रखे थे उसमें, क्या पता कल और भी पैसे होते उसमें। थैंक यू, पैसे ही तो ले गया ना, मैं तो ठीक ठाक घर पहुंचा ना। ऐसे करके वी क्रिएट 10 थैंक यू फॉर द एंटायर डे और मोर देन दैट। सो मनोज जी बोलते हैं उसको रात को भी लेके नहीं सोना है, ये लोटस ऑफ ग्रेटिट्यूड करो, विच इज कॉल्ड प्रॉब्लम रिजॉल्व साधना ऑल्सो। चेंजिंग योर परसेप्शन, when you change the way you look at something, what you look at also changes. So I think that's what hypnotherapy is all about. And जैसे आपने बोला कि बिना किसी मेजर इशू के आप हिप्नोथेरेपी में ना ही जाएं, बिकॉज क्या पता आप क्या ओपन करो। सो सम पीपल से अरे अरे आज मुझे ना ये वाली लाइफ देखनी है, तो आई ऑलवेज यूज टू शेयर, आई ऑल्सो डोंट नो आप कौन सी लाइफ देखने वाले हो, वी नेवर नो। आप पास्ट लाइफ में इस लाइफ का पास्ट भी देख सकते हो और कोई पास्ट लाइफ भी देख सकते हो, यू नेवर नो। बट काम हिप्नोथेरेपी सेशन से पहले भी करना पड़ता है, हिप्नोथेरेपी सेशन में भी करना पड़ता है, बिकॉज आई थिंक द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट आर इक्वल पार्टनर इन अ थेरेपी। और हिप्नोथेरेपी के बाद तो और भी काम करना पड़ता है, बिकॉज you have seen something, and ultimately what I pick up from what I have been trained by you is two things. First, I'm 100% responsible for my life. वो जेब काटने से लेके रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल, जितने चैलेंजेस हैं, थैंक यू फॉर क्रिएट, आई एम बैलेंसिंग दोज कर्मास। एंड सेकंड, जब आप रीफ्रेम करना आपने हमें सिखाया डॉक्टर सुनील, जब हम एक्चुअली में जाके वो पिक्चर चेंज करते हैं, डॉक्टर सुनील ओनली टॉट अस वन थिंग, क्लोज इट विद लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन। किसी ने कितना भी बुरा किया हो, कैसा भी किया हो, आपको उसको उस लेवल तक आप हमें लेके जाते थे कि आप दोनों एक हो जाओ। एंड मनोज जी ऑलवेज सेज देयर आर 7 स्टेप्स टू दैट। जब आप किसी के साथ फॉरगिवनेस में आते हो, यू फॉरगिव द पर्सन, यू लव द पर्सन, यू से ग्रैटिट्यूड टू द पर्सन, यू हग द पर्सन, यू टच द फीट ऑफ दैट पर्सन, एंड द लास्ट इज you become one with that person. So I think that's the biggest takeaway from me, and that's a freshing up my memory also, how love is the end of every story. So with gratitude, forgiveness and forget. Yes.
forgiveness and forget. But forget करना कई बार मुश्किल होता है, यही and I तो think there hypnotherapy plays a very important role कि erase कर दो उसको. ऊपर वाले ने इसीलिए तो ये सब चीजें हमें डाल के दी है ना, कि लड़ मरते रहो, कोई रिच हो गया, कोई पुअर हो गया, सब मिल के लोग सारे टाइप के एक गुलदस्ता बना के दिया है हमें. हम Right. ह्यूमैनिटी को एक फूलों का गुलदस्ता बनाया. Yes, ताकि कोई हम लाल है, कोई experience पीला ले है, सकें. कोई हरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई जंगल में खिलता है फूल, कोई खेत में खिलता है, कोई किसी के बगीचे में खिलता है. ये एक, अगर हम लाइफ को एक गुलदस्ता लेके चले तो, और उसको गुलदस्ते को अच्छे से सोच के चले. सिर्फ यही नहीं हमारी लाइफ में, अगर हम आज किसी गेस्ट को घर बुलाते हैं तो अच्छे मन से, सुखी मन से खाना खिलाएं, तभी उस खाने में पॉजिटिव एनर्जी आती है. नहीं तो आप बुलाएं ही नहीं उस गेस्ट को. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का ही सारा खेल है, और हिप्नोथेरेपी सिर्फ एनर्जी लेवल पे काम. Right, right. That's what Manoj says. We are not human on the human journey. We are the energy who is taking a human this thing experience. कि इंसान बन के आपको कैसा लगता है. So Manoj always says the first step towards spirituality is stop judging. ये अच्छा, ये बुरा, ये सही, ये गलत, जब तक माइंड से वो नहीं निकलेगा. इस बार हमारा स्कोप कैंप हुआ और उन्होंने हमें सिखाया, अगेन आई टोल्ड यू हाउ पार्ट्स में ज्यादा काम है, कि कैसे हर छोटी बात पे हम जज करें. एंड आई थिंक हमारे साथ लाइफ में भी जो होता है उसको भी हम बड़ी जल्दी कैटेगराइज कर लेते हैं. एंड दिस इज आई हैव लर्न फ्रॉम यू एंड फ्रॉम ऑल द अदर माय टीचर्स एंड माय मास्टर्स दैट life is not only black and white. There are more colors to it, and we can always look forward for that. And I really request everyone to please write your sharings in the chat box. What did you realize from today's session? Or you can raise your hand about today's whole complete session. सर क्लासेस लेते हैं वर्षा जी, मैंने नंबर शेयर किया है, आप सर को व्हाट्सएप करिए, वो आपको रीना के साथ कनेक्ट करेंगे. और आई पुट रीनाज नंबर ऑल्सो हेयर, आप उनसे बात कर सकते हो. आई थिंक अब सर शायद ऑनलाइन क्लासेस भी लेते होंगे जरूर. यस, तो मैं रीना का भी नंबर दे, यू कैन गेट इन टच. यस, तो अगर आपको शेयर करना है तो अभी हैंड रेज कीजिए. अभी क्वेश्चन हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग टाइम जो है क्रॉस द टाइम, सो इफ यू हैव शेयरिंग अबाउट इट देन यू कैन रेज द हैंड. एक छोटी सी बात और मेरे को सबको देनी है. ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है. ये मेरा घर, ये मेरा पैसा, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे नहीं है. ये सब ऊपर वाले के दिए हुए हैं, और ये ऊपर वाला मेरे से जो है इन सब की रखवाली कराता है. तो हमेशा ये अपने घर को और अपने ऊपर वाले को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको बोलिए, उसका धन्यवाद करिए कि भैया मैं तो रखवाला हूँ, चौकीदार हूँ, ये सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है. क्यों? मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता, एक दमड़ी भी नहीं लेके जाता. यही मेरी पास्ट लाइफ है, यही मेरा सब कुछ है. उसी ने दिया था कि इस लाइफ में मेरे पास 6 कमरे का घर दे रहा हूं तेरे को, इसको अच्छे से रखना. दूसरे को कहता है कि मैं तेरे को 2 कमरे का ही घर दूंगा, तो इसको ही संभाल ले, काफी कुछ है. तो ये सब उसका दिया हुआ है, उसका धन्यवाद करो और उसके चौकीदार बन के रहो. लाइफ हमेशा सुखी रहे. That's so good. Meghna, I hope you want to share something. Yes, Meghna, unmute yourself. So thank you so much for sharing. It was so beautiful. I mean, it's just because Manojji keeps telling us you can do it on a vibration mode, or, you can just, keep it on, and any which ways you've just come back from the camp. So it's like, let's be a little more serious in the first week. So that was the main reason why I joined in. And I've always, been a little scared, if I can use that word, about hypnotherapy. It's like, what exactly is it? You've never realized, I've never explored it. So I was always scared, After I have really been listening intently to this conversation. And it's not scary at all. I mean, it's just one tool that you are using to just go higher in your consciousness.
So I just wanted to share that, that it just changed my perspective. It just changed it immediately. It was such a beautiful session, sir. I'm so grateful to you that you could come and, tell it to us. Kapila ji, I'm so grateful to you that you introduced us to this. Thank you so much. It was one of the most beautiful, profound things, about myself. Of course, I caught my pattern and I passed it on, but it was so beautiful. Thank you so much. Thank you. Thank you. हिप्नोथेरेपी लोगों को एक वहम बैठा हुआ है. इट इज समथिंग वेरी वेरी इजी एंड वेरी समथिंग टू एक्सपीरियंस. इसका एक्सपीरियंस बहुत बहुत ही मीठा है और बहुत ही लाइट एक्सपीरियंस है. ये तो मीडिया ने और लोगों ने इतना हाइप करके उसको जो है इतना बना रखा है. नहीं, पर 2-3 चीजें हैं. हिप्नोथेरेपी ऑन स्टेज इज डिफरेंट. हिप्नोथेरेपी यूज बाय तांत्रिक्स एंड दीज पीपल जो लूटते हैं आपको, वो डिफरेंट है. और हमारी जो हिप्नोथेरेपी है दैट इज फॉर हीलिंग. सो आवर हिप्नोथेरेपी इज द बेस्ट हिप्नोथेरेपी बिकॉज एंड इट इज वेरी लाइट. जो लगता है कि पत्नी ट्रांस में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं. इट इज सच ए ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस यू गेट इन द ट्रांस. Thank you so much, sir, for sharing. Thank you. Yeah. Thank you. Yes. आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन हम इतना ग्रेटफुल है हमारे मनोज जी के बारे में. ये सब टूल्स उन्होंने हमें इतना प्रैक्टिकली दिए है. तो ये ना इतना जैसा ये कपिला जी बार बार कैच करती थी और बार बार बता रही थी कि मनोज जी ने ऐसा बताया, मनोज जी ने वैसा बताया. तो हम कितने लोग हैं, यानी बहुत लकीएस्ट है हम कि हमको ये मनोज जी के थ्रू पूरा प्रैक्टिकल मिल रहा है. थैंक यू ललिता जी. प्रकाश जी अनम्यूट करिए. प्रकाश. हाँ, सूरज प्रकाश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मतलब आपने इतने अच्छे सुंदर शब्दों में इस चीज को मैंने पहली बार सुना. मतलब ये क्या चीज होती है, मतलब हिप्नोथेरेपी, और इसके बारे में मेरे कई संशय थे कि मतलब अगर कोई हिप्नोथेरेपी के लिए जाएंगे तो लोग उसको समझे कि ये मेंटल पेशेंट है, ये बीमार पेशेंट, जैसा दिमाग खराब हो गया, मतलब ऐसा कुछ लोग समझते होंगे. लेकिन आपने बहुत सुंदर शब्दों में मतलब जो कई चीजें ऑर्डिनरी डॉक्टर्स हील नहीं कर सकते, उस चीज को आप पास्ट लाइफ की तरफ झाके मतलब उसको पूरी तरह से हील करके उस आदमी को कितना सुखी बना देते हैं. मतलब जो कई चीजों से ग्रसित होता है पूरी जिंदगी भर, वो रोता रहता है इस चीज के बारे में, अपने आप को खुले ही सब पा सकता है. उसकी पोटेंशियलिटी वो मतलब डेवलप नहीं कर सकता है. और हिप्नोथेरेपी वगैरह इसके सारे ट्रीटमेंट होने के बाद में वो आदमी कैसे खिलता है, वापिस कैसे खुलता है और कितना खुश रह सकता है. ये चीज आपने दी हमको. कपिला जी, आपको इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए सुनील प्रकाश जी को बहुत बहुत आपको धन्यवाद. अपने बहुत सुंदर शब्दों में आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की. शब्द सब इतने सारे एग्जाम्पल दिए आपने. बहुत आपका धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू जी. आज का तो इतना मीन्स एकदम डेप्थ लेवल में हम जो सीख रहे हैं उसका कंपैरिजन कपिला बहुत अच्छा कर रही थी. हम लोग इसमें जी रहे हैं तो कभी लगता है कि ऐसा इनके साथ जाऊं क्या नहीं जाऊं, जरूरत नहीं, हम ये इम्प्लीमेंट करेगा अपना लाइफ में, आजमाएगा तो. लेकिन कहीं कहीं मेरा लाइफ में ऐसा एक चीज आया गया है, उसका लाइफ में इतना डेप्थ इसमें हर्ट हो चुका है. 14 साल में उसके साथ में कुछ इंसिडेंट हो चुका कि वो डिसाइड किया मैं शादी करेगा तो बच्चा नहीं करूं. ऐसा कोई मिल गया बच्चा, वो आदमी भी ऐसा मिल गया, ठीक है बच्चा नहीं तो नहीं, शादी तो करेंगे. शादी तो हो गया. अभी किसी ने बोला कोई एडॉप्ट दे रहे हैं तो कर लो, वो कर ली. ये जो बच्ची 8 महीने का, उसको इतना करती है कि उसका हाथ में लेते उसको डर है. शी हैज रिटन इन द विजन ना, कपिला माँ हम उनको कहते हैं विजन, यू आर ए त्रिकालदर्शी. या 8 महीने का बच्चे का त्रिकालदर्शी लिखा गया है. भाई हम क्यों लिखा है ऐसा? मेरे साथ जो घटना हो गया मेरे बच्चे के साथ, गुड़िया के साथ, ऐसा नहीं होनी चाहिए. एंड व्हाई यू अट्रैक्टिंग दैट थिंग, उसको मैं समझ नहीं पाता, उसको समझा नहीं पा रही हूँ मैं. उसका लाइफ में ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो चुका, उसको कैसे पार लेके आना, वो भी एक बड़ा प्रश्न मेरे को लगता है. तो इसमें सबसे बड़ी बात है वही वापस वही आते हैं कि पहले समझना पड़ेगा कि वो बच्चे के बारे में ऐसा क्यों सोचते.
आई थिंक डॉक्टर सुनील, श्यामला मैम आप एक बार रीना से बात करिए, मैं हाँ आपको जी, नंबर दैट इज और टेकन हर नंबर Yes, डेफिनेटली। रीना से आप डिस्कस कर लें उसके बाद। उसको कुछ तो आई वांटेड टू गिव हर। जी जी ठीक है, बिकॉज अभी ना हम लोग थोड़ा सा टाइम आई क्रॉस गॉट कर इट, रहे आई हैं, गॉट सो जी क्विकली दीपक जी फटाफट शेयरिंग करते हैं जयश्री माँ टुगेदर वन लाइन एंड देन जिनके भी क्वेश्चन है। यस दीपक सर कुछ सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में बताइए ना, कि वो हमें सर किस अभी तरीके टाइम से नहीं है, एनहेंस। क्योंकि सेल्फ दीपक हिप्नोसिस के लिए हमें हो सकता है कपिला जी से रिक्वेस्ट करके कोई एक और सेशन करना पड़ेगा। वो उसके लिए एक अलग इट इज एंड समथिंग वेरी लॉन्ग, यू नो। सर ने ऑलराइट, सर ने सजेस्ट किया था कि आज हम एक छोटा सेशन कराते हैं, पर सुनील सर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे लोग हमारे सेशन के टाइम गाड़ी चला रहे होते हैं जी या हाँ जी किचन हाँ। में काम कर रहे होते हैं, सो वो हमें थोड़ा सा हेजिडेंट था कि पता चले वो दे गो इनटू दैट जोन नहीं एंड नहीं, देन ट्रांस में नहीं, जो गाड़ी चला रहे हैं मैं ट्रांस में उनको ले जा ही नहीं सकता। एंड देन दे वुड बी हियरिंग दिस, इसलिए आज हमने अवॉइड किया। सो क्विकली जयश्री जी आपका लास्ट, देन वील बी क्लिकिंग सम पिक्चर्स। यस, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस जयश्री। जय गुरुदेव सर, बहुत ही अच्छा बताया। और वो मेरा जो लाइफ का पर्पस है सोशल वर्किंग, और मुझे आगे जाके एनजीओ ओपन करना है, तो उसके लिए ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और मेरा एक क्वेश्चन था कि ये सीख सकते हैं क्या, अगर मतलब डॉक्टर बनना, मतलब डॉक्टर के फील्ड में ही सीख सकते हैं कि कोई भी सीख सकता है, ये ऐसा पूछना था मुझे। अब बिल्कुल सीख सकता है, पर वो देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या चीजें हैं। जैसे अगर आपको पता हो अमेरिका में तो कोई एज नहीं है किसी चीज को सीखने की, अंदर से इच्छा होनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे भी है कि अगर आप अंदर से कोई इच्छा है तो आप चाहें तो जो मर्जी है बन के सीख सकते हैं। आजकल मटेरियल इतना अवेलेबल है, कोई जरूरी नहीं कि डिग्री सामने हो। अगर आपको सोशल सर्विस करनी है, सीखना है, तो आप जरूर सीख के उसके ऊपर काम करें और लोगों को हेल्प करें। Thank you. And there are a lot of other compliments for this session. विजय जी आप और मैं पढ़ सकते हैं फिर देर। एक प्रदीप पाटिल जी बार बार कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रतीक जी आप एक बार हैंड रेस करिए, तब तक मैं स्पॉटलाइट में लेते हैं, तब तक मैं पढ़ती हूँ। I have to learn a lot. I'm ready to learn every day. This is the learning from today's session. Pankaja. Varsha ji, I'm just a guardian. Bhavna ji, wonderful session. Thank you, thank you, thank you. Anuradha ji, learned many things. Looking forward to attend more sessions like this. Then okay, beautiful session today. Pradnya ji shared. Would like to know more in depth about it. Can you please extend to more such sessions? Thank you, Dr. Sunil. One Prakash is talking with another Prakash. Prakash Badera ji के आपके लिए था. Anuradha shared, thanks Dr. Sunil and Reena ji. You both are motivating as always. Always learn from you. And many more thank you. And Pradeep ji, आप hand raise करिए, then we can take the next last question. Meanwhile, Vijay ji, let's click a photo. आप हो यहाँ पर विजय जी? Yes, I'm there completely. First आप दोनों का एक फोटो हो जाए then. ओके राइट। सुनील जी एक बड़ी सी स्माइल के साथ सर। यस आप ले रहे हो? यस पुट द हार्ट नो। ओके हार्ट, रिएक्शन बॉक्स से एक हार्ट निकालेंगे, ये आया। ओके रेडी? या ऑलरेडी। ओके थैंक यू। और अब हम सबके साथ लेंगे वीडियो। सब अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, गैलरी में आएंगे, वीडियोस ऑन। जय श्री माँ, आई कांट सी योर वीडियो, नो पीपल, हार्ट्स आउट, रेडी वन। आप ले रहे हो विजय भाई? एक और आप ले लो एक, आप ले लो एक। ओके रेडी 1 2 3 हार्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन बॉक्स एंड हियर आई हैव टेकन। यस थैंक यू। And I will be sharing this picture. विजय जी सबको राइट दीजिए अनम्यूट करने का। Yes, it is there already. अच्छा, so थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, जय गुरुदेव, गुड नॉलेज। थैंक यू, जय गुरुदेव, थैंक यू। Thank you so much, Sunil ji. Thank you so much. Thank you, Kapila ji, for introducing Sunil ji.
Thank you, Reena, Thanks for for arranging everyone. all this. Thank you. Hello, I wanted to ask the question. I'm not getting a chance. Now it's Sorry. time. Its time I'm is finished now. So next session definitely will take your first question. okay. Next session, when next session is there, sir? Yes, surely, sure. Thank you so much, everyone, for joining. Thank you, everyone, for joining. Thank you, Reena, for arranging all this. And thank you, Dr. Sunil, for sharing all this knowledge. And yes, we would definitely meet you at another session, going more deeper into understanding this, because जब हम लोग माइंड को साइंस के पॉइंट से समझते हैं, then we can understand कि हैबिट्स और रोजमर्रा की जो छोटी छोटी चीजें हम इस प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं, they have a very long lasting effect in our life. Thank you. Plan a session at a time when they are at home so that we can do some practical calls. हाँ, वो आई डोंट नो, पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग इस टाइम ऑफिस से वापस आ रहे थे, बिकॉज लॉग इन इज लाइक अ मैंडेटरी थिंग फॉर एवरीवन. तो जो जहाँ भी होता है, if you can do it on a holiday or a Sunday, if you can plan something like that so that people will again be at home, and not trying. All right, sure. That's a good suggestion कि हम किसी हॉलिडे पे कर सकते रहे. Yes, Tina, you want to add something? Unmute yourself. Yes. Thank you, Kapila, and your team for this opportunity. And I would like to just add that through hypnotherapy or through self-healing, self-work, you're not just helping yourself in this life, you are also working for your future lives. मतलब ये जिंदगी तो आप सुधार रहे हैं अपने ऊपर काम करके, किसी भी मोडालिटी, चाहे वो हिप्नोथेरेपी हो चाहे सेल्फ वर्क हो, आप अपनी फ्यूचर लाइफ भी सुधार रहे हैं. Absolutely right. तो आई ऑलवेज से, जो आपने इस लाइफ में ठीक कर लिया वो अगली लाइफ में ठीक नहीं करना पड़ेगा. कैरी फॉरवर्ड, मतलब स्पेशली चलती रहेगी. यस, वी कैरी फॉरवर्ड दैट, जस्ट लाइक आवर हॉलीडेज पिछले साल की इस साल कैरी फॉरवर्ड हो जाती है ना, similar way all our learnings will be carried forward to next life. In fact, there is a beautiful thing sir shared, but वो हम किसी और सेशन में करेंगे कि कैसे लाइफ की मेमोरीज के पैकेट्स बनते हैं. I still remember that lesson. Right? Thank you so much, everyone. God bless us all. Have a superb weekend. Enjoy. जिनको मैं देख रही हूँ उनको मैं बाय कर सकती हूँ. बाय प्रकाश जी, बाय विजय, बाय गौरव, प्रीति जी, मीता, Latika, Lalita, Arun, and Badruddin ji and Jignesh ji, and I could see. Okay, Kapila ji, you can close the meeting now. You are the host.